الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں بہت جلد ایک ویڈیو غیر مقلدین کے عالم کفایت اللہ سنابلی کے ساتھ ایک نوجوان کی جو ڈیبیٹ ہیں اس کا پیش کروں گا کہ کس طرح ان غیر مقلدین کے علماء سے جب ان کے اصولوں کے مطابق سوال کیے جاتے ہیں تو یہ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک ہفتے پہلے ہی لائیو اسٹریم میں آئی پلس ٹی وی کے سینئر اسکالر کفایت اللہ سنابلی سے ایک نوجوان نے سوال پوچھے، اور اس نوجوان کا جو اصول تھا وہ بڑا زبردست تھا کہ وہ نوجوان ان کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوا اور اس نے اپنے سوال کو نہیں بدلا۔ حالانکہ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اگر سائل کا سوال ہارڈ ہے تو اس سے ہی سوال کیے جاویں، اس کے سوال کو بدل دیا جاویں، دوسرے ٹاپک پہ لے جاویں، لیکن وہ سوال کرنے والا نوجوان مضبوط تھا۔ اس کی وجہ بھی تھی کہ وہ 10 سال غیر مقلد بن کے غیر مقلدوں کے ساتھ رہا ہے، 10 سال تک وہ غیر مقلد تھا، فرقہ اہل حدیث میں تھا، پھر اس نے توبہ کی ہے۔ تو یہ بھی ایک لوگوں کے سامنے بتلانا مقصود تھا۔ میرے ویڈیو کے نیچے بہت سے غیر مقلدین یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ بتاؤ کوئی ایسا نوجوان جو فرقہ اہل حدیث میں اور اس نے توبہ کیوں۔ تو لیجیے آج میں آپ کو ایسے ہی نوجوان کی ایک ڈیبیٹ سنا رہا ہوں غیر مقلد عالم کے ساتھ، کہ جب اس نوجوان نے کفایت اللہ سنابلی سے رفع الیدین کے تعلق سے پہلے ان کا اصول پوچھا کہ آپ لوگوں کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی صحیح حدیث ہو تو ہم عمل کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر اس نوجوان نے مسلم شریف کی ایک حدیث رکھی کہ بتاؤ اب اس حدیث پر کہ جس میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کرنے سے منع فرمایا، تم عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو دیکھیے کیسے کفایت اللہ سنابلی صاحب ہائپر ہو رہے ہیں، اس کے مائک کو بار بار میوٹ کیا جا رہا ہے۔ جواب سوال کرنے والا ایک ہے تو جواب دینے والا بھی ایک ہونا چاہیے۔ جب کفایت اللہ سنابلی سے جواب نہیں بن پائے تو زید پٹیل آ رہے ہیں، شیخ صابان بدر آ رہے ہیں، بچانے کے لیے سب آ رہے ہیں۔ تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے، اور یہ انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے کہ جو نوجوان تحقیق کرتے ہیں، جو نوجوان اس کو جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ فرقہ اہل حدیث کے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث پر، ہم صحیح حدیث پر عمل ہے، ان کا دعویٰ کتنا سچا ہے، ان کے لیے یہ ویڈیو بڑا ہی فائدہ مند ثابت ہوگا کہ تحقیق اس طرح ہونی چاہیے۔ جب بھی کسی معاملے میں تحقیق کرو تو اس سے کاؤنٹر سوال کرو۔ چلیے میں آج کی ویڈیو کو شروع کرتا ہوں، سنیے۔ ایک بھائی ہیں، ان کا نام ہے، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، توحید درویش الحنفی۔ انہوں نے کہا میں ایکس سلفی ہوں، ایکس سلفی۔ تو آپ یہ کا پتا استقبال ہے نہیں توحید بھائی جی، آپ کا استقبال ہے اور ہمیں خوشی ہے آپ آئے ہیں ہمارے سے بات کرنے جی۔ تو کون سا سب سے اہم سوال آپ کون سا پوچھ سکتے ہیں آج؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب سے پہلے میں آج سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً جو اہل حدیث ہندوستان پاکستان میں ہے۔ تو 2008 سے 2018 تک میں اہل حدیث تھا۔ 2008 سے 2018 تک؟ جی 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 8 سے مان اس لیجیے سے پورا پہلے کیا تھے؟ اس سے پہلے کیا تھے؟ جی اس سے پہلے کیا تھے؟ 2008 سے پہلے کیا تھے؟ ہاں صاحب، ہاں، تو یہ اس کو نئے سرے سے بتائیے، نئے سرے سے بتائیے۔ میں پہلے حنفی تھا، پہلے میں حنفی تھا، 2008 سے اہل حدیث کے ساتھ وابستہ رہا تو اہل حدیث بن گیا۔ اور میں پہلے ہی معافی چاہتا ہوں، اہل حدیثوں کا لہجہ برا ہوتا ہے تو میرا اس کیا کہتے اس وہ گروپ میں رہ کر، اس معاشرے میں رہ کر میرا لہجہ بھی ویسا ہی ہے۔ تو میں پہلے ہی اس چیز کی معافی مانگتا ہوں آپ سے کہ اگر میرے بولنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے معاف کر دیجیے گا۔ سب سے پہلا جو میں سوال اصل میں حنفی، یہ آپ کیا بول رہے ہیں کہ اہل حدیثوں کا لہجہ برا ہوتا ہے، یعنی حنفی سب دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں؟ سب نہیں دھلے، لہجے کی برائی کا مسلک سے کیا تعلق؟ نہیں، لہجے کی برائی کا مسلک سے کیا تعلق ہے؟ یہ آپ کون سا کارڈ کھیل رہے ہیں یہاں پہ آ کر کے اہل حدیثوں کا لہجہ برا ہوتا ہے؟ جی جی میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کون سا کارڈ کھیل رہے ہیں یہاں پہ آ کے کہ اہل حدیثوں کا لہجہ برا ہوتا ہے؟ آپ یہ کو مسئلے ڈسکلیمر پہ دے گفتگو رہے کرنا ہے، آپ ہیں مسئلے پہ ایک منٹ آنے دو۔ آپ کا لہجہ اگر اچھی نیت سے اچھا
किफायत भाई, कि अभी जिस ये मसलक पे बोले ये कि हैं, मेरा लहजा बुरा अभी है, जिस मसलक पे ये ये हैं, अहले उनका हदीस असर का कुछ आया लहजा नहीं। बुरा होता है, हनफी का लहजा बुरा होता है। पहले आप अदब सीखिए। आप बोलिए ना कि मैं बदअखलाक हूँ, आप बोलिए कि मैं बदअखलाक हूँ और इसलिए मैं, आप ये बोलिए कि मैं बदअखलाक हूँ, आप ये बोल दीजिए कि मैं बदअखलाक हूँ, मैं बदअखलाकी से बात करूंगा। ये कौन सा डिस्क्लेमर होता है कि लेडीजों का लहजा बुरा होता है तो उनके साथ रह करके मैं बुरा हो गया हूँ? ये कौन सी बात है? आप अपनी बदअखलाकी को जवाब दे रहे हैं कि मेरी, आप अपनी बदअखलाकी को जवाब क्यों दे रहे हैं? आप सीधा सीधा बोल दीजिए मैं बदअखलाक हूँ। नहीं की, मैंने अभी बद अखलाकी नहीं की। आपने बात इससे सुनिए। बड़ी बदअखलाकी और क्या मैंने होगी भाई ये कि एक कहा, पूरी ध्यान जमात से को आप सुनिए, बोल दिए कि मेरी उनका बात लहजा सुनिए। बुरा होता है। मैंने मेरी एक पूरी मेरी बात जमात सुनिए। को आप मैंने बोल कहा, रहे हैं उनका लहजा बुरा होता है, ये बदअखलाकी नहीं है? हनफियों में आप भी यहाँ पे होते आकर हैं के भाई बैठ साहब। करके एक पूरी जमात पर अवाम इल्जाम लगा दे रहे हैं कि उनका मौलाना लहजा बुरा साहब, होता है, ये आप बदअखलाकी जो नहीं है। मेरा मैं सवाल है आपको वो हनफियों की मेरा सवाल बदअखलाकी की करने मिसाल दीजिए दूं? मौलाना साहब। मौलाना साहब, अभी हम लोगों ने, इनको चुप करिए थोड़ा देर के लिए, तो इनको चुप कराइए थोड़ी मौलाना देर के लिए। साहब माइक बंद मत करिए, अभी माइक हमने बंद मत एक करिए। स्ट्रीम, अभी हमने एतिकाफ के मामले में एक स्ट्रीम की, उसमें एक बंदा करके बोलता है कि तुमको अगर लगता है कि एतिकाफ में औरतों के जाने से फितना नहीं होता है तो अपनी औरतों को हमारे घर पे भेजो, हमारी मस्जिदों में भेजो। ये अखलाक है अहनाफ के? आप हमको सिखाने के लिए आए हैं कि अहले हदीसों का लहजा बुरा होता है? आपको सवाल करना है, आप सवाल करें। अखलाक किसके कितने अच्छे हैं ये दुनिया जानती है। सीधा सवाल करें आप आकर के, या बोल दें कि मैं अच्छा। बदअखलाक हूं, मैं आगे बदअखलाकी करूंगा। ये मत बताइए कि मैं अहले हदीसों के बीच में रहता हूँ तो इसलिए मेरा लहजा बुरा हो गया। हाँ, ये हलाला करने अच्छा वाले अखलाक सरफराज होते भाई, हैं, फालतू बात करते हैं। आवाम को तो छोड़िए, आवाम को तो और बदअखलाक हम हैं। हलाला सेंटर आप चलाते हो, बदअखलाक हमको कहते हो? शर्म नहीं आती? हाँ, औरतों की इज्जतों के साथ खेलते हो और हमें बदअखलाक कहते हो? जिस सवाल करें आप, सवाल करें, सवाल करें, इस बात की सवाल करें। एक पॉइंट और ऐड हो जाए। ये अवाम की, सरफराज भाई ने तो अवाम की बात की ना, हमने तो उलमा को सुना है। अब मैं नाम लेके बताता हूँ, ताहिर गयावी, ताहिर गयावी। जवाब, सवाल जवाब हो गया। आपकी, आपने जो ये बात कही है इस पर बात होनी जरूरी है। ताहिर गयावी अपनी तकरीर में, सुनिए सुनिए जरा म्यूट करिए इनको। ताहिर गयावी अपनी तकरीर में अपनी ऐलान करके कहता है कि तुमको आमीन कहने और कहलवाने का बहुत शौक है, आ करके हमारी मस्जिदों में आमीन कहते हो, जरा कभी अपनी औरतों को भी भेजो ना आमीन कहने के लिए। मतलब वो कुछ करेंगे जब वहां औरतें आमीन कहने के लिए जाएंगी। तो ये तुम्हारे मसलक का मतलब चेहरा है। जरा इस अपने मसलक का चेहरा देख लो, और जिस मसलक में अभी हो उसका असर नहीं पड़ा तुम्हारे ऊपर। इतने बदमाश आप हैं, मतलब आप वाटर प्रूफ हैं एकदम, कोई असर नहीं पड़ने वाला आपके अखलाक पे। अब आगे बोलिए, आप जो बोलना है। अभी तौहीद भाई, आप अपना मेन सवाल जो है ना उस पे आइए। ये कमेंट्स करने से क्या होता है, इल्ज़ाम और बहतान एक दूसरे पे लगाने से मसला हल नहीं हो रहा है। अभी आपको कौन सी चीज़ परेशान कर रही है, सबसे इम्पोर्टेंट लग रही है, कम से कम एक बात ऐसी अच्छे से डिस्कस हो जाए, मेरी कोशिश होगी। जी बताइए तौहीद भाई। जनाब, सबसे पहले मैंने आपसे जो बात अर्ज की वो ये कि मेरा लहजा तल्ख हो सकता है। आपने अच्छा, चलो भाई, अपनी इल्जामात और बात रखो बोहतान यार। आपने अपना डिस्क्लेमर दे दिया और वो बात पे काफी चर्चा भी हो गया। अभी आगे बढ़ेंगे। नहीं नेक्स्ट आप, मैं सवाल पे आइए। कह रहा हूँ ना, तो आप आपने सिर्फ disclaimer इल्जामात, देते सवाल रहेंगे करो या भाई, आपने- सवाल करो, क्या सवाल है? और दूसरी चीज, कैसा भी मैं करना सवाल करो करता यार। कोई बात नहीं, आप अपनी बात जी, मैं पूछिए और सवाल करता कोशिश हूँ। करिए हम लोग जी, सब मैं सवाल करता एक दूसरे के साथ और जो मैं भी ये बेहतरीन उम्मीद बात रखूंगा आप बीच में माइक बंद नहीं करेंगे। जी, मैं सवाल करता हूँ, ऐसा है, जब कोई क्या जवाब दे हदीस रहा है के तब आप सामने ओवर स्पीक ना करिए। दो लोग बात करते हैं ना, पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपने ये नौजवान 10 साल फिरका अहले हदीस में रह चुका है, लिहाजा इस नौजवान को जिसने अहले हदीस से तौबा की, सब पता है कि लोग क्या करते हैं, तो वो पहले से शराइत तय कर रहा है। देखो मैं सवाल करूंगा, मेरा जवाब एक ही देना, सब मत बोल पड़ना। ऐसा होता है, आप सवाल लेके जाओ कोई, और जब सवाल हार्ड होगा ना तो आलिम भी बोल पड़ेगा, दूसरा भी बोल पड़ेगा, तीसरा भी बोल पड़ेगा। तो वो पहले से सवाल रख रहा है, शराइत रख रहा है कि भाई मेरे सवाल का जवाब एक ही बंदे को देना, सब मत बोल पड़ना। दूसरी शर्त रख रहा है, मैं जब सवाल करूं पूछूं, मेरे माइक को म्यूट मत सवाल करना। ये है, क्या किसी इमाम, किसी मुहद्दिस, किसी फकीह का कौल हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुज्जत है, उसकी कोई हैसियत है? ठीक है, आपने सवाल पूछ लिए। जी बताइए। जी शेख। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के सरीह खिलाफ अगर किसी का भी कौल है, कोई भी हो, तो वो हुज्जत नहीं है। बाकी हम अगर वो मुस्तहिदीन में से हैं, अहले इल्म में से हैं, तो गरचे हम उनके कौल से इख्तलाफ करें, लेकिन उनका एहतराम हम बरकरार रखते हैं, उनको मुस्तहिदीन में शुमार करते हैं। लेकिन अगर कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ कोई बात आती है तो हम उन्हें माजूर मानते हुए उनके लिए उज़्र तलाश करते हैं कि हो सकता है
इनकी समझ में ये बात ना आई हो या इन तक ये हदीस ना पहुंची हो, उन्हें माजूर मानते हुए हम उनकी बात को मुस्तरद कर देते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तरजीह देते हैं। जी नाजरीन सुनिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लिया है। वो कहते हैं ना कि किसी की दुखती रग पे हाथ रख देना। आम तौर पर ये फिरका अहले हदीस के लोग इसी उसूल से लोगों को गैर मुकल्लिद बनाते हैं कि अल्लाह रसूल के मुकाबले में किसी इमाम की बात आ जाए, किसी की भी बात आ जाए, उसको छोड़ दो। हालांकि ये उसूल तमाम मुसलमानों का है, लेकिन इन्होंने अपने लिए उसको खास कर लिया है कि हम लोग ऐसा करते हैं। और फिर इसके लिए क्या करते हैं, इमाम अइम्मा मुज्तहिदीन के वो अक़वाल जो इन्होंने हदीसों से निकाले हैं, तो उन हदीसों को बयान नहीं करते हैं, सिर्फ कौल बयान करेंगे। जैसा आपने देखा था, मैंने अभी शेख सरफराज फैजी गैर मुकल्लिदीन के आलिम i+ TV के स्कॉलर ही का एक वीडियो एक्सपोज किया था, जिसमें वो असर की नमाज के अव्वल वक्त के ताल्लुक से कह रहे थे कि दूसरी तरफ तमाम अहादीस मौजूद है और एक तरफ इमाम अबू हनीफा का कौल। मैंने एक्सपोज कर दिया और मैंने बताया इमाम अबू हनीफा का ज़ाती कौल नहीं है, यहाँ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतें मौजूद है। ये इज्तिहादी मसला है, लिहाजा इस मसले के अंदर गुंजाइश है। आप अगर इज्तिहादी मसले को बयान करें तो यहाँ आपके दिमाग में भी गुंजाइश होनी चाहिए, इतनी शिद्दत नहीं होनी चाहिए कि हम ही सही बाकी के सब गलत। अगर मुज्तहिदीन का इख्तिलाफ है तो बरहक है, लेकिन ये गैर मुकल्लिदीन तो मुज्तहिद है नहीं। अब देखिए साइल ने सवाल कितना बेहतरीन किया है कि अगर किसी इमाम मुज्तहिद या मुहद्दिस की बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुकाबले में आ जाए तो उसको लिया जाएगा या नहीं। शेख ने जवाब बड़ी आसानी से दे दिया कि बिल्कुल किसी की बात अल्लाह रसूल के मुकाबले में हुज्जत नहीं है। आम तौर पर यह गैर मुकल्लिदीन का उसूल है। असल में इस नौजवान ने इनकी जबान से यह उसूल बुलवाया है। अब देखिए कि ये नौजवान एक सही हदीस पेश करेगा और इनको पाबंद करेगा कि अब इस हदीस पर आप लोगों का अमल क्यों नहीं है। सुनिए जी, मेरा सवाल सुनिए। सही मुस्लिम में तर्क रफ़ैदैन की वाज़ेह हदीस है, तो आप रफ़ैदैन तर्क क्यों नहीं कर देते? तौबा तो अस्तगफिरुल्लाह। कहाँ सही मुस्लिम में? पूरी सही मुस्लिम तो जाने दीजिए, सही मुस्लिम, बुखारी, बल्कि कहीं भी कुतुबे सित्ता में आप कौन से रफ़ैदैन की बात करते हैं? 5 वक्त की नमाज है ना इसी में? जी जी 5 वक्त की जो नमाज है इसमें रफ़ुलदैन तर्क कर दिया गया। रुकू में जो रफ़ुलदैन होता था, मैं जी कर कौन रहा से हूँ रफ़ुलदैन की तर्क की बात? रुकू में? सही मुस्लिम रुकू में की जाते बात हुए कर रहा रुकू हूँ। से उठते हुए। सही अरे मुस्लिम मेरा की सवाल बात सुनो, सुनिए। एक मिनट, मेरा सवाल। जी जी हम रुकू में जाते हैं, रफ़ुलदैन करते हैं, रुकू से उठते हैं, रफ़ुलदैन करते हैं। इस रफ़ुलदैन को तर्क करने वाली कोई हदीस है बुखारी, मुस्लिम या कुतुब सित्ता कहीं भी? उसकुनु फी सलाह का मतलब क्या होता है मौलवी साहब? मतलब नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल क्या उसकुनु है? फी सलाह का मतलब क्या होता है? सवाल नहीं, हदीस क्या है? उसकुनु फी सलाह का मतलब क्या होता है? एक मिनट, उसकुनु फिसरात में रुकू होता है। माली अराकुम राफी आयतिकुम कान्ना अजनबु खाली शम्स। उसकुनु फी सलाह का मतलब क्या हुआ? एक में मेरी बात सुनो। देखिए कैसे घुमा रहे हैं। उस नौजवान ने जो पहले अहले हदीस था, फिरका अहले हदीस में था, वो तौबा करके अब हनफी बना है। उसने इनसे सवाल कर लिया कि मुस्लिम शरीफ में सही हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रफुल यदैन करने के बारे में सहाबा से फरमाया उसकुनु फी सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करो। वो नौजवान इनसे सवाल कर रहा है कि उसकुनु फी सलाह का क्या मतलब, शेख बताइए। तो शेख क्या कर रहे हैं, जवाब देने की बजाय उसी नौजवान से काउंटर सवाल कर रहे हैं। भाई आपने स्टूडियो बनाया इसलिए, आप लोग लाइव स्ट्रीम इसलिए चला रहे हैं कि नौजवानों के सवालात के जवाब दें, लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है। जब ये फंसते हैं तो नौजवानों से ही सवाल करने लगते हैं। अब ये पलट के सवाल कर रहे हैं कि रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त वो वाला रफुल यदैन कहाँ मना है, उसका नाम बताओ। उससे नाम पूछ रहे हैं, जबकि ये मसला इज्तिहादी है, ये मसला इज्तिहादी है, तो ये सराहत मांग रहे उससे। आगे सुनिए ये नौजवान किस तरह इनको पकड़ेगा और ये कैसे हाइपर होते हैं। रुकू से उठते हैं, रफ़ुलदैन करते हैं। ये रफ़ुलदैन छोड़ दिया गया, कोई एक बात बताओ। मैं कह रहा हूँ सारे छोड़ दिए गए इस हदीस की बुनियाद पे। तो पहले क्यों करते हो? उसकुनु फी सलाह, उसकुनु फी सलाह का मतलब क्या होता है? इस हदीस का मतलब बता दीजिए। माली अराकुम राफी आयदिकुम का मतलब क्या हुआ? नहीं, पहला आपने कहा कि माली अराकुम राफी आयदिकुम। बस इनको मौका मिलना चाहिए, पकड़ने के लिए मौका मिलना चाहिए, चाहे फिर सामने जाहिल हो आलिम हो, ये किसी को नहीं बख्शते। देखिए सवाल करने वाला आम बंदा है, आलिम नहीं है। 10 साल फिरका अहले हदीस में रहा है, फिर तौबा करके वो हनफी बना है। वो कह रहा है कि भाई जब उसकुनु फी सलाह कह दिया गया रफुल यदैन के बारे में, तो वो नौजवान अपने तौर पर कह रहा है, किसी जमात का मनहज या नजरिया नहीं बयान कर रहा है। वो कह रहा है
کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب اسکنو فی الصلاۃ اللہ کے نبی نے فرما دیا تو سارے رفع الیدین چھوڑ دیے گئے، وہ ساتھ میں تکبیر تحریمہ کو بھی چھوڑنا بیان کر رہا ہے. تو غیر مقلد اسکالر اب اس کو وہاں پکڑیں گے کہ تکبیر تحریمہ چھوڑ دیا گیا، بتاؤ تم حنفی بھی تو کرتے ہو، یہ کرتے ہو. اصل سوال کے جواب سے بھٹکایا جائے گا، اس کو دیکھنا آگے. اس کا مطلب اسکنو فی الصلاۃ کا مطلب کیا ہوا؟ کہ سارے رفع الیدین چھوڑ دیے گئے تو پہلا آپ کرتے کہ نہیں کرتے؟ زبردست بات کی، یہی میں چاہتا تھا آپ اشکال پیدا کریں. زبردست. اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. مولانا صاحب آپ کہتے ہیں کہ پہلا رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ آپ کو یہ مسلمہ اصول پتہ نہیں ہے کہ جو اتفاقی مسئلہ ہو اس پر دلیل پیش کی نہیں کی جاتی. یہ تو جہالت ہے سراسر، یہ تو سراسر جہالت. یہ اتفاقی مسئلہ ہے، پہلا رفع الیدین کیا جاتا ہے. یہ آپ کی جہالت ہے. مولانا صاحب جہالت نہ دکھائیں. سنو مولانا صاحب سنو بات سنو. زبردست پکڑا ہے اس نوجوان نے. کہا اس نے کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. اس نوجوان سے تکبیر تحریمہ والے رفع الیدین کا ثبوت مانگ رہے. اس نے کہا کہ یہ اصول ہے، مسلمہ اصول ہے کہ جب کوئی مسئلہ اتفاقی ہو تو وہاں دلیل نہیں مانگی جاتی. رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت یہ اتفاقی مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی دیکھیے آپ غیر مقلدین کے علماء دلیل مانگ رہے اس سے. آگے دیکھیے کس طرح یہ پھنستے ہی چلے جائیں گے. کفایت بھائی اس طرح گفتگو مت کیجیے. ایک منٹ کفایت بھائی اس طرح گفتگو مت کیجیے. یہ بیچ میں بول رہا ہے آدمی. آپ ٹائم تقسیم کرائیے. دو منٹ گفتگو کیجیے. انہوں نے کہا کہ سارا رفع الیدین چھوڑ دیا گیا. خود کہا اس بندے نے کہ سارا چھوڑ دیا گیا. میں نے سوال اٹھایا کہ کون سا رفع الیدین ترک کیا گیا. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ سارا رفع الیدین چھوڑ دیا. اب میں اس پہ سوال کر رہا ہوں کہ پہلا کیوں کرتے ہو بھائی؟ تم پہلا اگر سارا چھوڑ دیا گیا تو پہلا، تو اب واپس سے اپنی بات بدل رہا ہے شخص. بہرحال صحیح مسلم کی جس روایت کی طرف یہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات آپ ہمارے سامنے نہیں لا رہے ہیں. اس روایت پر تو زمانہ ہو گیا، 10 سال ہو گئے. میرا آرٹیکل موجود ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ہماری میگزین میں آ چکا ہے، بہت ساری ویڈیوز میں ہم بیان کر چکے ہیں. اس سے پہلے اسی اسٹریم میں ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی، وہ تشہد میں ہاتھ کے اشارے والی ہے. یہ رکوع والا رفع الیدین مراد نہیں ہے، بلکہ خود حنفی علماء تک نے کہہ دیا ہے کہ اس روایت سے استدلال کرنا، یا اہل حدیثوں کی بات کرنا ہے، حنفی علماء تک نہیں مانتے، دوسروں کو جانے دیجیے. خود علماء احناف نے لکھ رکھا ہے کہ اس سے ترک رفع الیدین پہ استدلال کرنا یہ درست نہیں. تو وہ تشہد والی بات ہے، وہ نماز میں تشہد سے متعلق ہاتھ اٹھانے کی بات ہے، اور یہ شخص اس کو رکوع والے رفع الیدین سے ملا رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے علماء احناف کو اکٹھا کر لیں، کتب ستہ سے کوئی ایک صحیح روایت بتا دے جس میں یہ ذکر ہو کہ رکوع والا جو رفع الیدین ہے وہ چھوڑ دیا گیا. ایک روایت کو بتائیں جس میں رکوع کا ذکر ہو. جی مولانا صاحب آپ صحیح ہوا. مولانا صاحب جوڑ سنیں. مولانا صاحب رکیے ذرا. آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث، میں نے جو حدیث پیش کی نا اس میں سارے رفع الیدین کا ذکر ہے. یہ مسلمہ اصول ہے، اتفاقی مسئلے پر دلیل نہیں مانگی جاتی، یہ جہالت ہے. دوسری بات سنیے، آپ نے کہا یہ حدیث جو ہے وہ تشدد کے باغ میں ہے. ایک منٹ، انہوں نے کہا نا کہ سارے رفع الیدین کا ذکر ہے. مطلب کس طرح سے بندہ اپنی بات کر، ایسا لگ رہا ہے سب بیوقوف بیٹھے ہوئے یہاں پہ. انہوں نے ایک بات کی جملہ کہ سارے رفع الیدین کا ذکر ہے. اس حدیث میں بتاؤ کہاں سارے رفع الیدین کا ذکر ہے. یہ زید بھائی نے وہ حدیث نکالی ہے، اب یہ صاحب آئیں اور بتائیں کہ کہاں سارے رفع الیدین کا ذکر ہے. مائک آن کیجئے جناب. مائک آن ہے جناب. مائک نماز میں جتنے رفع الیدین ہوتے ہیں وہ سارے اس سے ہو جاتے ہیں منسوخ. دھیان سے میری بات سنیے گا. آپ نے اپنی بات کی، میری بات سنیے گا. سارے کے الفاظ کا سنیں. مالی اراکم رافی ایدیکم، سنیں. مالی اراکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خلشم اسکنوا فی الصلاۃ. پہلے آپ یہ اعتراض کرتے تھے پہلا کیوں کرتے ہو. جب میں نے یہ جواب دیا کہ پہلا بھی چلا گیا، اب آپ یہ کہتے کہ جناب اس میں سارے کا لفظ کہا ہے. اس کو نہیں، ایک منٹ آپ جو چاہیں مطلب ادھر سوئچ نہیں کر سکتے، جو چاہیں نہیں بات کر سکتے. آپ نے پھر وہی بات دہرائی کہ سارے رفع الیدین کا ذکر ہے. اگر سارے کا ذکر ہے تو یہ جو شروع کا رفع الیدین ہے اس کو آپ کیسے الگ کرتے ہو؟ بتا، اس کا جواب دیجیے، ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا ہے. سارے اور یہ جی ہاں اچھا سوال ہے شیخ. بالکل میں اس کا جواب دیجیے. مولانا صاحب میں اس کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز، آپ کو یہ شاید اصول پتہ نہیں کہ اشکال کے پیدا ہونے سے مسئلہ ختم نہیں ہو جاتا. اب جواب سنیے. اب میں اس پہ دلیل بھی دینے لگا ہوں. جواب سنیے. آپ کہتے ہیں کہ پہلا تک ادھر ادھر کی بات نہیں کرنے دوں گا میں آپ کو.
इश्काल आपने पैदा किया, खुद आपने कहा। आपकी बात को मैं आपकी बात से टकरा रहा हूँ, इधर उधर का उसूल मत बताओ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि सारे रफल का जिक्र है, अब आप बताओ कि वो पहला क्यों करते हो? मौलाना साहब, आपको शायद यह पता नहीं कि आपके लिए सही हदीस हुज्जत है। मैं एक काम करता हूँ, मैं नमाज पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे। नहीं नहीं, आपने कहा कि सारे रफुलदैन का इसमें जिक्र है, फिर जो पहला रफल, ये मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, इधर उधर भाग रहे हैं, ये हुज्जत है वो हुज्जत है, ये नहीं, मेरी बात का जवाब दीजिए। इसमें सारे रफुलदैन को दिखाइए, और फिर पहली बात ये दावा आपका। दूसरा, आपने कहा सारा छोड़ दिए, और आपने ये भी कहा कि इसमें सबका जिक्र है। फिर पहला जो रफुलदैन आप नहीं करते, जब आपका दावा है कि हदीस में सबका जिक्र है और सबको छोड़ दिया गया, तो फिर पहला कहां से पकड़ लिया आपने और कहां से अमल करें? इस बात का जवाब चाहिए, इस बात का आप जवाब दीजिए, इधर उधर हम आपको नहीं जाने देंगे। मौलाना साहब, इसका हवाला भी दूंगा, आप बार बार माइक म्यूट मत करें, मैं आपको बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने जो बात की, मेरी बात नहीं है, आपने जो, या तो बात वापस लीजिए, कह दिए बात गलत है, हम आगे बढ़ते हैं, कह दीजिए मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत कह दिया, लेकिन जो बात आपने कही उसका सबूत दीजिए, उसका जवाब दीजिए। आपने कहा सारे रफुलदैन का जिक्र है, फिर ये भी कहा कि सबको छोड़ दिया, फिर मेरा सवाल तो बनता है ना कि पहला रफुलदैन कहां से आ गया, उसको क्यों पकड़े नहीं आप? इसका जवाब दीजिए आप। मौलाना साहब, मैं फिर से कह रहा हूँ, सारे रफेदैन का जिक्र है, सारे रफेदैन का जिक्र है। ध्यान से सुनिए, माइक बंद मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ सारे रफेदैन का जिक्र है। उसके बाद आप कह रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं कि आप पहला तकबीर तहरीमा क्यों करते हो, ठीक है? मैं कहता हूँ मौलाना साहब, हदीस हुज्जत है, सब छोड़ दो, मुहद्दिस छोड़ दो। नहीं, फिर मेरी बात का जवाब नहीं, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। ये सीधा जवाब दीजिए कि आप जब दावा कर रहे हैं कि इसमें सारे रफुलदैन का जिक्र है और सबको छोड़ दिया, फिर आप पहले पे क्यों अमल कर रहे हैं? जब इसमें तर्क हो गया तो पहले पे क्यों अमल कर रहे हैं आप? इसका जवाब दे दीजिए कि पहले पे अमल क्यों कर रहे हैं, कौन सी दलील है? जब इसमें छोड़ दिया तो आप खुद दावा करेंगे छोड़ दिया, जब छोड़ दिया आपकी नजर में तर्क हो गया तो फिर आप क्यों अमल कर रहे हैं? उसका जवाब दीजिए, क्यों अमल कर रहे हैं? एक मकरूह चीज को अमल में क्यों ला रहे हैं आप? इसका जवाब दीजिए। मौलाना साहब, आप जवाब देने नहीं देंगे, आप बार बार माइक म्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये दलील देने वाला है। आप खामोश रहेंगे तब आपको समझ आएगी। मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं ना कि पहला क्यों कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप मेरे पीछे नमाज पढ़े, मैं पहला भी नहीं करूंगा, आप भी ना करें, आप कोई भी ना करे, हमारे लिए हदीस हुज्जत है। मैं कह रहा हूँ अगर आप नहीं, देखो ऐसे बात नहीं चलने दी, आपने जो बात की उसका जवाब देना पड़ेगा। पहला रफल आप कह रहे हैं कि नहीं, ये होगा भागने वाली बात, मैं नहीं करूंगा, मेरे पीछे पड़ो, नहीं। पहला रफल जब तर्क कर दिया गया तो ये आप मानते हो, आपने शुरू में पहले कहने की कोशिश किया क्या कि इजमा है, सबका इत्तेफाक है, तो आप यहाँ पे वाजे कर दीजिए कि क्या पहला भी नहीं मानते, तो बोल दीजिए कि मैं पहला रफुलदैन भी नहीं मानता, आप बोल दीजिए। और इसका जवाब दीजिए कि जब सारा तर्क अगर कहते नहीं मानता हूं पहला रफुलदैन, आप करें ना करें, मसला ये बताएं कि पहला रफुलदैन है कि नहीं है। जब तर्क हो गया, आप अमल करें या ना करें, आप क्या करें उससे लेना देना, लेकिन आप यहाँ फतवा दे रहे हैं, आप यहाँ शरीयत की एक बात बता रहे हैं, आप इस बात को वाज़ेह करें कि पहला रफुलदैन, जब यहाँ सारे रफुलदैन छोड़ दिए गए तो पहला बचा कि नहीं बचा? आप करें ना करें उससे लेना देना। आप ये बताइए कि जब आप खुद एक तरफ दावा कर रहे हैं कि सब छोड़ दिया, तो जब सब छोड़ दिया तो पहला भी बाकी बचा, उस पर आप नहीं कोई भी अमल करेगा तो सही होगा या गलत होगा, ये बताइए आप। मौलाना साहब, मैं कह रहा हूँ पहला भी नहीं बचा, आप हदीस पे अमल क्यों नहीं करते, आप पहला क्यों नहीं छोड़ते? आपके लिए हदीस हुज्जत है, हदीस के मुकाबले में कोई कौल ना लाए, हदीस में लिखा है सारे गए, आप पहला भी ना करें। ये कहना चाहते हैं, आप पहला ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं, एक मिनट आप मुझसे कहना नहीं, आपको तो ये कहना पड़ा ना कि पहला भी नहीं सी, ये आपने एक ऐसी बात कह दी जो उलमाए अहनाफ में से कोई इसका दावा नहीं करता, बल्कि खुद थोड़ी देर पहले रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप इजमा की तरफ जा रहे थे, इत्तेफाक की तरफ जा रहे थे कि सबका इत्तेफाक है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, फिर आपसे पूछ रहा हूँ ताकि सबके सामने आपकी हैसियत वाज़ेह हो। आप आए थे हनफियत को बचाने के लिए, हनफियत को जो आप ढा रहे हैं ना, उसका किला जो गिरा रहे हैं वो भी सबको पता चल जाए कितने पानी में, तो आप इसको जरा वादे कीजिए। आपसे मैं कबूल करवाना चाहता हूँ कि पहला भी रफुलदैन नहीं है, जो करते हैं गलत है, जो हनफी लोग पहला रफुलदैन करते हैं वो सबके सब गलत करते हैं, इस बात का ऐलान कीजिए। जनाब, जो अहले हदीस चार मकाम का रफेदन करते हैं वो भी गलत है आपके उसूल के मुताबिक, और आपके उसूल के मुताबिक अगर हनफी पहला, मैं अपने उसूल से नहीं पूछ रहा हूँ, आपके उसूल से पूछ रहा हूँ। आपने बताया कि इस हदीस में सारे रफुलदैन का जिक्र है और सब कुछ छोड़ दिया गया, इस उसूल की जद आपके पहले रफुलदैन पे पड़ती है। अब आप बताइए कि जो सारे अहनाफ पहला रफुलदैन करते हैं वो छोड़ दिया गया, वो गलत है। आपने भी क्या कहा, अपने ऊपर लेके बचने की कोशिश की, आपने भागने की कोशिश किया कि मेरे पीछे नमाज पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं रफुलदैन नहीं करूंगा। हालांकि इस पीछे पढ़ने की बात कहां से आ गई?
لیکن جب آپ نے ابھی بھاگنے کی کوشش کیا نا کہ میں نہیں کروں گا، وہ بات وہ اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. آپ یہ صاف بتائیے کہ علماء احناف پہلا رفع دین کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں. حنفی حضرات غلطی کرتے ہیں، حنفیوں کا یہ مسئلہ غلط ہے. سارا رفع دین آپ کہیے نا کہ سارا رفع متروک ہو گیا، کسی میں عمل نہیں کیا جائے گا. پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. حدیث پر ہماری نظر ہے کہ حدیث میں مفہوم کیا ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. پہلے آپ کے گلے میں جو ہڈی پھنسی ہے نکل جائے نا، تو آپ کہیے کہ سارے علماء احناف جو ہے غلط کرتے ہیں. پھر میں جو علماء احناف یا حنفی حضرات جو پہلا رفع دین کرتے ہیں اس کو بھی میں صحیح ثابت کرتا ہوں، اور جو اہل حدیث باقی رفع دین کرتے ہیں اس کو بھی ہم صحیح ثابت کرتے ہیں. لیکن پہلے آپ کی حیثیت تو واضح ہو جائے. جس حساب سے آپ نے انٹری ماری ہے کہ آپ کے ہتھوڑے سے علماء احناف پہ آپ کا ہتھوڑا تو پڑے کہ پہلا رفع دین جو کرتے ہیں غلط ہے. آپ اس کو کلیئر کیجئے کہ پہلا جو کرتے ہیں وہ غلط ہے. جی مولانا صاحب پہلے آپ یہ لمبی تقریریں کرنا بند کر دیجئے. میں جو سوال کر رہا ہوں نا اس سوال کا جواب دیجیے. آپ بار بار میوٹ کریں، سب ریکارڈ ہو رہا ہے یہاں سے بھی. بیچ میں میوٹ مت کیجیے. جواب سنیے. میوٹ کروں گا، یہ آپ کا اسٹیج نہیں ہے. یہ میوٹ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کچھ بھی بول کے بھاگنے دیں گے آپ کو؟ نہیں. آپ سب پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لائیو ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو بات کہہ دی ہے اسی کے تعلق سے میں پوچھ رہا ہوں. سننے والے انصاف کریں گے کہ کون صحیح کر رہا ہے کون غلط. آپ اس بات کو جب آپ نے بھی کہہ دیجیے کہ میں نہیں کروں گا، تو آپ یہ کہہ دیجیے نا کہ سارے علماء احناف غلط کرتے ہیں. پہلا رفع دین بھی چھوڑا جا چکا ہے، ابھی متروک ہو چکا ہے، اس کو بھی غلط ہے. آپ مانیے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، حدیث سے بات کرتے ہیں. اس کا اتنا ماننے میں کیا پرابلم آپ کو؟ اہل حدیث کیسے اپنے اصول سے خود بھاگ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. کیسے بھاگ رہا ہے اپنے اصول سے؟ جو اپنے پہلے بات کی تھی حدیث کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی، وہ آپ خود بھاگ رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ پہلا رفع دین نہ کریں. اب میں دلیل دیتا ہوں آپ کو. دلیل چلتی نا پہلا رفع دین نہ کرے تو آپ کہیے نا کہ علماء احناف غلط ہیں. حنفی لوگ جو پہلا رفع دین کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. آپ کہہ دیجیے، ہم آگے بات کرتے ہیں. آپ کہیے اس کو کہ حنفی لوگ غلط کرتے ہیں پہلا رفع دین. اگر آپ یہ بات مانتے ہیں پہلا رفع دین اگر اہل حدیث غلط کرتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ غلط کر رہے ہیں حنفی لوگ. پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. جی. اصول سلفیہ سے حنفی اور اہل حدیث 4 مقام اور پہلا تکبیر دونوں غلط کرتے ہیں. اصول سلفیہ سے، آپ کے اصول سے بتا دیا میں نے. آپ کے اصول سے نہیں ہے، ہم آپ کے اصول سے پوچھ رہے ہیں. ہمارے اصول سے مت بتاؤ. آپ یا تو حدیث سے بتاؤ یا اپنے اصول سے بتاؤ. ہماری بات بعد میں ہوگی. آپ یہاں بات کرنے آؤ، دعویٰ آپ لے کر آئے ہو نا، تو ہم آپ کے حساب سے بات کریں. ابھی تو ہم نے کچھ پیش ہی نہیں کیا. رفع دین کرنے کی دلیل ہم نے پیش کیا نہیں پیش کیا؟ ابھی ہم نے کوئی دلیل نہیں پیش کی. ہم نے اپنے موقع پر کوئی بات نہیں کی. ہم تو آپ کی دی گئی دلیل پر بات کر رہے ہیں کہ آپ نے جو دلیل دیا ہے وہ آپ کے دعوے سے میچ نہیں کر رہی ہے. اور جو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں سارے رفع دین کو چھوڑ دیا گیا، اس میں پہلا بھی چھوٹ رہا ہے، تو آپ اعلان کر دیجئے کہ جو پہلا رفع دین حنفی لوگ کرتے ہیں وہ غلط ہے. پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. جی. آپ کو نہ تو اصول کا پتہ ہے نہ کچھ. آپ چپ کریں، لمبی تقریر نہ کریں کہ وہ دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، یہ کرے. میری بات سنیے. آپ بار بار 2 منٹ 50 سیکنڈ کے بعد 10 سیکنڈ کے بعد مائک بند کر دیتے ہیں. میری بات سنیے مولانا صاحب. آپ کا وہ کیلیبر ہی نہیں ہے، پوٹینشیل ہی نہیں ہے. سوال کا جواب سنیے. نہیں، آپ دیکھیے، ادھر ادھر کی بات نہیں کرنے دوں گا میں آپ کو. آپ پہلے یہ مسئلہ حل کر دیجئے، ورنہ میں آپ کو ایسے بھگا دوں گا. پہلے مسئلہ حل کر دیجئے. آپ دعویٰ کر دیجئے کہ یہ غلط ہے جو کہتے ہیں، پھر ہم آگے حدیث سے بات کرتے ہیں. مولانا صاحب میں نے پھر سے کہا، آپ نے جو اصول سٹارٹ میں بیان کیا کہ محدث کا فقیہ کا کسی کا بھی قول حدیث کے سامنے نہیں چلے گا. میں نے اسی اصول کے تحت یہ ثابت کر دیا آپ کے 4 مقام کا رفع دین اور پہلا رفع دین یہ اس حساب سے آپ کے اصول سے حساب سے غلط ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اصول کے حساب سے میں نے ثابت کر دیا ہے غلط ہے. اب بات سنیے دوسری. ارے بھائی میں چلو میں آگے بڑھتا ہوں. آپ سے آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ کہنے میں کیا دقت ہے ہم غلط کر رہے ہیں، ہم پہلا رفع دین کرتے ہیں، ہم غلط ہے. یہ حنفی لوگ سب کے سب غلط کر رہے ہیں. پہلا رفع دین کر کے سارے احناف غلطی کر رہے ہیں. یہ کہنے میں آپ کو کیا آتا ہے؟ یہ کہیے، پھر ہم آگے حدیث پہ بات کرتے ہیں. حدیث کے اگلے حصے پہ بات کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بسم اللہ. مولانا صاحب میں نے 3 دفعہ یہ بات کہی، ریکارڈ پہ جا رہا ہے. میں نے 3 دفعہ یہ بات کہی. آپ کو پتا ہے آپ ہنسنے والے. میں دلیل دینے لگا ہوں آپ کے گھر سے دلیل دینے لگا ہوں پہلے رفع دین کی، جس رفع دین ہوتا. اور یہ نہیں دیکھو میرے بھائی، آپ کہہ رہے ہو، آپ نے ہمیں سنا آپ کی بات. آپ کہہ رہے کہ اہل حدیث جو پہلا کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. ارے بھائی جو حنفی پہلا کرتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں نا غلط ہے. آپ اہل حدیثوں کو غلط بول رہے ہو. پہلا رفع دین آپ حنفیت کی وکالت کرنے آئے ہو تو پتہ چلے نا کہ حنفیت کی وکالت کر رہے ہو یا حنفیت کی دیوار ڈھا رہے ہو آپ. تو پہلا جو رفع دین ہے وہ اہل حدیث غلط کرے، آپ نے کہہ دیا. آپ کہہ رہے حنفی جو کر رہے ہیں پہلا رفع دین وہ بھی غلط ہے، یہ آپ کہہ دیجئے، پھر ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں صحیح کی غلط ہے. پہل کو بٹایا، مجھے لگا کوئی بندہ عالم ہوگا بھائی. ہاں سنیے بھائی، میں آپ کے گھر سے دلیل دینے لگا ہوں. صحیح وہ بعد میں دیکھ. ہمارے گھر سے دلیل نہیں چاہیے.
आप अभी तो हमने कोई बात ही नहीं किया, हमें क्या मनवाने आए हो? आपने जो हदीस मेंशन किया, जो हदीस कोट किया है, वो हदीस आपके दावे का साथ नहीं दे रही है। आप उसको मैच करके बताइए अपने दावे से। वो हदीस तो ये तकाजा कर रही है कि पहला रफ़-ओ-दैन की भी गुंजाइश नहीं है, तो आपको इस कहने में क्या प्रॉब्लम है? आपने ये कहा कि मैं अहले हदीस था फिर हनफी हो गया, तो जब आप हनफी हो गए, हनफियत की वकालत करने आए हैं, तो हनफियत में तो पहला रफ़-ओ-दैन है, तो ये बात तो आपका इस्तिलाल जो है हनफी अमल के खिलाफ जा रहा है, तो आप इस बात को मान लीजिए, इस बात के तरफ कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मौलाना साहब लोग देख रहे हैं आपकी जालत। मैंने 3 दफा ये कहा। देखो जवान सवाल की बात करो। आप एक तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हो, हाँ, और ऊपर से जो है जहालत की बात कर रहे हो। आपसे जो सिंपल सा सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि अहनाफ जो पहला रफ़-ओ-दैन करते हैं वो गलत है इस हदीस की बुनियाद पर। ये कहने में आपको क्या रहता है? आप कह दीजिए इसको। मैं बता रहा हूँ, अहले हदीस जो 4 मकाम का रफ़-ओ-दैन करते हैं और अहनाफ जो 4 मकाम का रफ़-ओ-दैन 1 मकाम का रफ़-ओ-दैन करते हैं, वो इस हदीस की बुनियाद पर अहले हदीस के उसूलों के हिसाब से गलत करते हैं। मैंने 4 दफा ये बात बताई। अब मेरी दलील सुनिए। अहले हदीस पे मक्कारी नहीं कर रहा हूं मैं, मक्कारी बिल्कुल नहीं। हदीस को तो जाने मक्का बिल्कुल समझ रखा। ये शख्स क्या कह रहा है कि अहले हदीस के हिसाब से गलत है, तो हिसाब से गलत हो रहा है, तुम जो इस्तेमाल करो ना उससे गलत हो रहा है। मक्कारी करने आओ, बदमाशी करने आओ। तुम्हारे अहले हदीस की बात कहां से आ गई? हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने दावा किया कि इस हदीस में सारे रफ़-ओ-दैन को छोड़ दिया गया, फिर आप कहते हो कि पहले रफ़-ओ-दैन का सबूत नहीं, तो आप अहले हदीस को बीच में क्या ले रहे हो? तुम्हारे हिसाब से मैं तुम्हारे मुंह से उगलवाना चाहता हूँ कि हनफी जो पहला रफ़-ओ-दैन कहते हैं वो तुम्हारे हिसाब से, वो हदीस के हिसाब से गलत है। या बोलो अहले हदीस बीच में कहां से आ गया? अहले हदीस कहां से आ गया बीच में? अहले हदीस ने तो कोई बात ही नहीं की, आपने दलील दिया, दलील आपने दिया है, उस हिसाब से आप बताइए। तो फिर मैं दोहरा रहा हूं, अहले हदीस का नाम नहीं लेना। दलील आपने पेश किया है, आपने हिसाब से बात कीजिए कि आपके दलील के एतबार से, आपके इस्तेलाल के एतबार से जो हनफी पहला रफ़-ओ-दैन करते हैं वो गलत है। करे मौलाना साहब लंबी तकरीर ना करे, मैं आपकी तकरीर सुनने नहीं आया हूँ। जवाब सुनिए। आपने पहली बात की गलत, इसके सामने किसी की नहीं चलती, हदीस रसूल के सामने किसी की नहीं चलती। आपने 4 मकाम का रफ़-ओ-दैन क्यों किया? अब आपका ये इश्काल है कि पहला क्यों करते हो? ध्यान से सुनिए मेरी बात। आपका इश्काल है पहला क्यों करते हो? मैंने आपको बताया मुसलमान उसूल है, इश्काल के पैदा होने से मसला बदल नहीं जाता। अब ये सवाल है, मैंने आपको बताया कि पहला तकबीर फालतू बात कर रहा है शख्स। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहा, बिना वजह फालतू बात कर रहा है और कह रहा है कि सारा रफ़-ओ-दैन छोड़ गया। अरे अगर तू पहला बता ना कि पहला उसमें शामिल नहीं है, या तो कह दे कि पहला गलत है, या कह दे कि सबूत उसको निकालने की दलील दे कि पहला उसमें शामिल नहीं है। अगर पहला शामिल नहीं है तो हम बताते हैं कि उसमें कौन कौन शामिल नहीं है। हमारी बात खास इस हदीस के बारे में। मौलाना साहब मैंने 4 दफा आपको कहा कि इस अगर आपके उसूल के हिसाब से इस हदीस से आपका 4 मकाम का और हनफी ये देखो मक्कारी नहीं, बिल्कुल मक्कारी नहीं। हमारा उसूल लाना नहीं यहाँ पे, हमने ना तो कोई दलील दिया ना कोई उसूल पेश किया। अभी तक की गुफ्तगू में ना हमारी तरफ से कोई दलील पेश हुई है, ना हमारी तरफ से कोई उसूल पेश किया हुआ। दलील तुमने पेश की है, उसूल तुमने पेश किया, इस्तिलाल तुमने पेश किया है। ये इस्तिलाल तुम्हारे मसलक के खिलाफ जा रहा है, तुम्हारी हनफियत के खिलाफ जा रहा है, तुम उसकी सफाई पेश करो ना। अभी हमारी बात तो शुरू नहीं हुई है। मौलाना साहब झूठ ना कहे कि आपने उसूल नहीं किया। आपने पहले मैंने आपसे आपके मुंह से उसूल निकलवाया। ये झूठ ना कहे, सब देख रहे हैं। आज आपको जलील करके छोड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। आज आपको जलील करके छोड़ूंगा। अब बात सुनिए मौलाना साहब, अभी मैं पहले रफ़-ओ-दैन का हवाला सुन लीजिए। एक बात पहले से भाई, तुम्हारी बदअखलाकी है वो तुम अपने माँ बाप को जाकर के अपनी बदअखलाकी दिखाओ। यहाँ पर आओगे तो तमीज से बात करो। कौन जलील होगा कौन जलील करेगा ये अपने माँ बाप को दिखाओ, अपनी तरबियत। यहाँ पर आए हो ना, यहाँ पे अहले इल्म बात कर रहे हैं, तुमको ना किसी ने जलील कहा है, ना जाहिल कहा, ना फरीबी कहा, ना मक्कारा कहा, ना झूठ कहा। यहाँ पे एक इल्मी मसले पे बात हो रही है, इल्मी मसले पे इल्मी हैसियत से बात करो। तुम किसको जलील करोगे और कौन जलील हो रहा है वो सब देख रहे हैं यहाँ पर। तमीज से बात करो, तमीज से बात करोगे यहाँ पर, तमीज से बात करोगे। और ये बोलो कि मेरे माँ बाप ने मेरी अच्छी तरबियत नहीं की इसलिए मैं बदअखलाक हूँ। और अगर बदअखलाक हो तो पहले जाकर के अखलाक सीख करके आओ और उसके बाद आकर के यहाँ पे बात करो। बोलो मेरे माँ बाप ने अच्छी तरबियत नहीं की मेरी, और मेरी परवरिश एक जाहिल घराने में हुई इसलिए मुझे बात करने की तमीज नहीं है। और पहले जाओ अखलाक सीख करके आओ, फिर आकर के यहाँ पर बात करो। जलील करोगे, तुम जलील हो रहे हो, दिख नहीं रहे कि कौन जलील हो रहा है यहाँ पर? जाहिल इंसान। ये जाहिल अभी बोल रहा था कि मैं बगैर अशे का बात आगे बढ़ाइए, ये इसने भी बोला ना कि मैं बगैर रफ़-ओ-दैन की नमाज पढ़ूंगा।
इसने अभी खुद पहले गुफ्तगू में इस जाहिल इस दलील इंसान ने गुफ्तगू में अभी कहा कि मैं बगैर रफ़ुल-ए-दैन के नमाज पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे नमाज पढ़ो बगैर पहले रफ़ुल-ए-दैन के। इसने कहा कि मैं बगैर पहले रफ़ुल-ए-दैन के नमाज पढ़ूंगा। इसने कहा कि मैं हनफी हूँ और इसने कहा कि आप मेरे साथ आकर के नमाज पढ़े, मैं बगैर पहले रफ़ुल-ए-दैन के नमाज पढ़ूंगा। तो इसने खुद ये साबित किया कि बगैर रफ़ुल-ए-दैन के नमाज पढ़ सकता है पहली नमाज के बगैर। हमारी उसूलों के मुताबिक थोड़ी पड़ेगा, ये हनफी उसूलों के मुताबिक पड़ेगा ना। जब ये दावत दे रहा है कि आप मेरे पास आइए और मैं बगैर रफ़ुल-ए-दैन के पहले रफ़ुल-ए-दैन के बगैर भी नमाज पढ़ूंगा, इसका मतलब ये इसने तस्लीम कर लिया है कि पहले रफ़ुल-ए-दैन के बगैर भी नमाज हो जाती है और पहले रफ़ुल-ए-दैन करना मसनून नहीं है, पहला रफ़ुल-ए-दैन भी मनसूख हो चुका है। इसने खुद अपनी ज़बान से तस्लीम कर लिया, तभी तो ये बोल रहे हैं ना कि मैं मेरे पास आइए और मैं बगैर रफ़ुल-ए-दैन के नमाज पढ़ूंगा। तो अब शेख आप बात आगे बढ़ाइए, इसको खामोशी रखिए, आप अपनी दलील लीजिए। जब मैं इसके मुंह से ये उगलवाना चाहता हूँ कि पहला रफ़ुल-ए-दैन भी गलत है, तो कितनी होशियारी से बतना चाहता है। अहले हदीस के उसूल से गलत है, अहले हदीस को तुम्हारे उसूल से गलत है, क्योंकि इस हदीस अभी शुरू में इसने इशारा किया कि शुरू में मैंने क्या कहा कि हदीस आ गई तो हदीस के खिलाफ किसी का भी कॉल छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हदीस ये शख्स पेश कर रहा है और हदीस का मतलब यही बता रहा है। तो अभी हमने अपना कोई मतलब नहीं बताया कि हदीस का ये मतलब है, फलां का ये कौल है। सारा मामला इसी शख्स की तरफ से चल रहा है। हदीस पेश किया और तशरीह कर दिया, बंदे ने खुद हदीस पेश किया और तशरीह कर दिया कि इसमें सारे रफ़ुल-ए-दैन के छोड़ने का जिक्र है। अब जब इस शख्स ने हदीस पेश किया, हदीस का मफ़हूम पेश किया, उस पर हमने सवाल कर दिया कि अगर सारा हदीस की रूह से छोड़ दिया गया तो मियाँ तुम ये जो अहनाफ करते हैं पहला रफ़ुल-ए-दैन क्यों करते हैं, वो गलत है। आप बोल दो गलत है। ये शख्स जब कोई जवाब नहीं मिला तो कहा कि मैं अमल कर लूंगा, यानी मैं पहला रफ़ुल-ए-दैन छोड़ दूंगा। लेकिन आप ये कहो जनाब कि ये सारे हनफी गलत करते हैं, जो पहला रफ़ुल-ए-दैन करते हैं वो गलत, तुम नहीं करो तुम्हारा मसला है। लेकिन ये मसला यानी हदीस की रूह से साबित होता है कि पहला रफ़ुल-ए-दैन गलत है, इस बात का इकरार करो, हनफियों को बताओ, अहले हदीसों से पहले जाके उनको समझाओ कि तुम्हारा पहला रफ़ुल-ए-दैन गलत है। जी मौलाना साहब, आपने पहले उसूल बयान कर दिया था, झूठ मत बोलिए। अब बात सुनिए, आपको अरबी नहीं आती है। कहने का मतलब ये है कि हदीस आपने, मैंने क्या पेश किया, मैंने जो शुरू मैंने कहा ना कि हदीस के होते हुए किसी का कौल छोड़ देंगे, मैं इस बात को अभी कहीं अप्लाई भी नहीं कर रहा हूं। हदीस पढ़ा आपने, हदीस का मतलब बताया आपने। अब मैं कह रहा हूं कि अगर हदीस का वही मतलब है जो हम ये भी नहीं करेंगे मतलब सही जो आपने बताया, लेकिन अगर हदीस का वही मतलब है जो आपने कहा है तो भाई उस हदीस के खिलाफ हनफियों की बात जा रही ना। अगर मैंने जो शुरू की बात कही थी उसको आप इससे अटैच भी कर दो तो भी हमारी बात का बदल नहीं है। नहीं, हदीस के खिलाफ किसी की बात भी गलत हो जाएगी। तो अगर हदीस का यही मफहूम है जो आपने बताया है तो आपके मफहूम को अगर हम सही मान ले तो हनफी गलत हो जाएंगे जो पहला रफ़ुल-ए-दैन करते हैं। इस बात को बताओ ना कि गलत हुए कि नहीं हुए, आप कंफर्म करो। हम कहाँ बीच में आ गए, सारी बात हदीस आपका, तशरीह आपकी, हम तो सवाल कर रहे हैं कि इस तशरीह के खिलाफ उलमाए हनाफ जा रहे हैं, फ़िक़्ह हनफी जा रही है, आप जा रहे हैं, उसका क्या बनेगा? आप कौन कि वो गलत है? शेख आपने 5-6 बार मौका दे दिया, इन्होंने जनाब इसको मेरी बात सुनिए जनाब। अगर हनफी एक जगह पे गलत कर रहे हैं, आप 4-5 जगह पे गलत कर रहे हैं, फिर आप 5 जगह पे गलत कर रहे हैं, ठीक है। ये शख्स कह रहा है कि आपको अरबी नहीं आती है। मैंने कौन सी अरबी लफ्ज का तर्जुमा नहीं शेख, ये बोल रहे हैं, ये इन्होंने बोला ना कि हनफी एक जगह गलत कर रहे हैं और बाकी लोग, आप लोग 5 जगह पे गलत कर रहे हैं। इसको फिर से बोलिए, ये दोहराए इस बात को और इसको रिकॉर्ड कर। इसने बोला, अभी ये बोला इसने, इसको बोलिए कि ये दोहरा दे फिर से कि हनफी एक जगह गलत करें, लेडीज 5 जगह गलत करें। इसको बोलिए, ये दोहरा दे। इसने कहा रिकॉर्ड है, लेकिन अभी जो बंदा कह रहा है कि अरबी, अरे मैंने कौन सी हदीस का तर्जुमा कर दिया? ना मैंने किसी आयत का तर्जुमा किया, ना मैंने किसी हदीस का। अभी तो अरबी पढ़ने पढ़ाने की बात ही नहीं आई है। तो बहरहाल जो शेख सरफा ने सवाल किया कि आपने जो अभी कहा कि अहले हदीस बाकी जगह गलत करते, हनफी एक जगह गलत करते, ये आपने कहा, इसको जरा आप दोहरा दीजिए कि हनफी जो पहला रफ़ुल-ए-दैन करते हैं वो गलत करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, हदीस पे बात करेंगे। आप इस बात को दोहरा दीजिए कि हनफी, जितने भी हनफी हैं जो पहला रफ़ुल-ए-दैन करते हैं वो गलत करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो आपने स्टार्ट में उसूल बयान किया, उस उसूल के हिसाब से अहले हदीस 5 मकाम पर नमाज गलत पढ़ते और आप एक हनफी एक मकाम पर। फिर से बता देता हूँ, हनफी एक मकाम पर क्या? हनफी जो पहला रफ़ुल-ए-दैन करता है गलत करता है ना। आपके घर से दलील देने लगा। हनफी जो पहला रफ़ुल-ए-दैन करता है वो गलत करता है। खामोश रहिए, आपने पहले हदीस की मुखालिफत। नहीं, मैंने तो अभी कोई दावा नहीं किया, ना कोई इस्तेलाल किया।
आपने इस्तेलाल किया, आपके इस्तेदलाल के रूह से हनफी आपने मतलब दबी, आप कह नहीं पा रहे, लेकिन हम आगे बढ़ते, ज्यादा टाइम ज़ाया करेंगे। बहरहाल आप दबी जुबान में कह के इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक जगह कर रहे हैं और अहले हदीस गलत। तो इस शख्स के गले में ये हदीस फंस गई, ये आ रहा था इस हदीस को पेश करके ये बताने कि रफ़ुल छोड़ दिया गया। इस चक्कर में इस शख्स का पहला रफ़ुल भी जा रहा है और ये शख्स मान रहा है, यानी ये शख्स लाजवाब होके ये मजबूर है मानने पर क्या कि पहला गलत है। इस शख्स ने ये भी कहा कि मैं नमाज पढ़ाऊंगा तो पहला रफ़ुल नहीं करूंगा, और ये कह भी रहा कि अहले हदीस भी गलत है, हनफी भी गलत है, यानी इसकी नजर में रफ़े यदैन नहीं होना चाहिए, ये शख्स ने कहा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे जो हदीस है, मैंने शुरू में सवाल किया था कि हमारा दावा क्या, अभी तक मैंने नहीं पेश किया था दावा, अब मैं पेश करता हूं कि हम हदीस पे क्या, हमारा दावा यह है कि रुकू में जाते हुए और रुकू से उठते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफ़ुल साबित है, और इसके बरखिलाफ कोई हदीस मौजूद नहीं, कोई ऐसी हदीस मौजूद नहीं है जिसमें रुकू में जाते हुए या रुकू से उठते हुए रफुल यदैन का सबूत हो। ये हदीस जो इस बंदे ने पेश किया है, इस हदीस में बहुत ही वजाहत के साथ मौजूद है कि और ये कहा कि किसी शख्स का कौल नहीं लेंगे। हम भी मानते हैं कि हदीस के खिलाफ किसी शख्स का कौल नहीं लेंगे, लेकिन हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, अल्लाह के रसूल की बात तो लेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में जो रफुल यदैन मुराद है, यही हदीस और भी जगह पर है और हर जगह जो है बहुत ही वाज़ेह है, और तमाम मुहद्दिसीन ने इस हदीस का ही मतलब समझा। खुद ये हमारे हवाले से साबित करना चाहता, जबकि उलमाए अहनाफ की तरफ से मैं आपको बता दूं कि खुद हनफी उलमा भी, मिसाल के तौर पर मैं हवाला देता हूँ, महमूद हसन देवबंदी साहब है, इनकी किताब अलवर्दुश शज़ी सफ़ा नंबर 65, इसमें क्या लिखते हैं, इनके हवाले से लिखा हुआ है कि बाकी रहा अजनाब खैल की रवायत से जवाब देना बरुए इंसाफ दुरुस्त नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? ये एक हनफी आलिम कह रहे हैं कि ये अजनाब खैल जो हदीस इन्होंने पेश किया, हनफी इन्हीं के हवाला दे रहा हूँ, इनके घर का हवाला दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि इस्तिलाह दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो सलाम के बारे में, क्योंकि ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं महमूद हसन देवबंदी साहब कि वो सलाम के बारे में है, इसलिए उससे इस्तिलाल दुरुस्त नहीं है। कहते हैं कि सहाबे किराम फरमाते हैं कि हम बवक्ते सलाम नमाज इशारा बिलयद करते थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना फरमा दिया। तो ये इन्होंने जो आके काबिल झाड़ लेते ना, अरबी की बात कर रहे थे, अरबी तुमको ज्यादा आती है या अरबी ज्यादा महमूद हसन देवबंदी को आती है? आप जरा इसको फैसला करके बताइएगा कि आपको अरबी आती है, महमूद हसन देवबंदी, इन दोनों में से किसको अच्छी अरबी आती है? और आगे मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दरसे तिरमिजी जिल्दो सफ़ा 36 पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बाहयात हैं, आप जाके वेरीफाई कर लीजिए, पूछ लीजिए। कहते हैं कि लेकिन इंसाफ की बात ये, दरसे तिरमिजी जिल्दो सफ़ा 36, कहते हैं लेकिन इंसाफ की बात यह है कि इस हदीस से हनफिया का इस्तिदलाल मुश्तबे और कमजोर है। हनफिया का इस्तिदलाल क्या है? मुश्तबे और कमजोर है। ये हम अपने उलमा का हवाला नहीं दे रहे, हवाला मुहद्दिसीन के बहुत सारे हैं, लेकिन ये हवाला है खुद उलमाए अहनाफ का। ये शख्स को बहुत अरबी आती है ना, और ये बड़े बड़े उलमा इनके, ये बड़े बड़े लोग हैं इनके, ये कह रहे हैं कि इस हदीस से इस्तिदलाल हनफिया का दुरुस्त नहीं है, यानी ये सारे हनफी इस बंदे को गलत कर रहे हैं और ये बंदा सारे हनफियों को गलत कर रहा है। अब बताओ ये सही है या दूसरे लोग सही हैं? खुद फैसला कर। अब आप बताइए कि आप हदीस सही समझ रहे हैं या ये लोग हदीस सही समझ रहे हैं? चलिए बताइए। मौलाना साहब, पहले सबसे पहली चीज़ आपने झूठ का बात सुनी, ये जो आपने कहा ना कि ये सलाम है, अगर इस हदीस में जिसे मैंने इस्तिदलाल लिया है इसमें सलाम का लफ्ज़, मैंने कहा झूठ बोला? मैंने तो अभी अपनी बात की नहीं, मैं तो अभी जो है उलमाए अहनाफ की बात, कौन लोग झूठ बोल रहे हैं? उलमाए अहनाफ हो ना, तकी उस्मानी साहब झूठ बोल रहे हैं, और ये जो है क्या नाम है, ये जो देवबंदी साहब है महमूद हसन देवबंदी, ये झूठ, मुझे भी झूठा बोल रहे, आप इनको झूठा बोलो ना, आप उलमाए अहनाफ को झूठा बोलिए ना। जी बताइए कौन झूठ बोल रहा है? बताइए। 20 मिनट की तकरीर ना कीजिए, मेरे जवाब सुनिए, 20 मिनट की तकरीर ना कीजिए। आपने कहा ना सलाम के मतलब ये, वो दो अलग सनदें हैं, ध्यान से देखिए, दो अलग सनदें हैं, दो अलग वाक़। हमारी बात मत कीजिए, अभी मैंने अपनी बात नहीं की है, अभी तो हमने उलमाए अहनाफ के वाले से बात की। झूठा इनको की, जो लान तान करना इनको कीजिए ना, जब हम अपनी बात लाएंगे तो आप हम पर आइएगा। अभी तो हम आप ही के हवाले दे रहे हैं ना, आप आए थे बड़े तुम्हारे उसूल से साबित करोगे, तुम्हारे हनफियों की तमाचे तुम पे लग रहे हैं कि हनफी उलमा तमाचा मार रहे हैं, तुम्हें कुछ पता है?
है। अभी यार थोड़ी देर पहले जलील कहा, जलील तुम और कौन जलील, तुमको हाई हनफी उलमा जलील कर रहे हैं। तो ये हनफी उलमा कह रहे हैं कि इससे जो है इशारा मुराद है, तशहुद में सलाम मुराद है, रफुद्दीन मुराद नहीं है। तो आप इनकी बात को काउंटर करो, हमें मत कुछ कहो, हम झूठ बोल रहे हैं, हम तो इनकी बात नहीं कर रहे हैं, इनको बोले ये क्या कर रहे हैं। शेख जरा मौलाना अगर साहब, आपने आवाम महमूद के लिए हसन देवबंदी की तकलीफ तब से शुरू कर दी। एक आपने मिनट जरा अब ये जनाब शेख तकलीद का सहारा लेंगे जवाब देने के लिए। जब उस नौजवान ने मुस्लिम शरीफ की हदीस पेश की, सनद के एतबार से बिल्कुल सही रिवायत है, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है, तो जवाब क्या दे रहे हैं? अहनाफ ने भी माना है कि उससे रफुल यदैन का तरक साबित नहीं होता। इमाम बुखारी ने उसका मतलब ये बयान किया है कि ये तशहुद के बारे में। तो भाई तुम कब से लोगों की तकलीदें करने लगे? तुम्हारा तो ये दावा था कि हम कुरान हदीस को मानने वाले हैं, हमने अपना नाम अहले हदीस रखा है। हदीस बताओ, हदीस। इमाम बुखारी ने ये कहा, इमाम तहावी ने ये कहा, फुला ने ये कहा, ये तो तकलीद है। मौलाना साहब कहाँ ले जा रहे कौम को? लाए तो थे आप कुरान हदीस के नाम पर, और अब आप मुहद्दिसीन के अक़वाल बयान कर रहे हैं। शेख जरा मौलाना साहब, आपने महमूद हसन देवबंदी की तकलीफ तब से शुरू कर दी। एक मिनट शेख, जरा आवाम के लिए अगर आप क्या हो रहा है वो जरा आवाम को एक बार समझा देते हैं कि कौन सी हदीस इन्होंने पेश की, क्या मामला था, ताकि जो पब्लिक नहीं समझ रही है वो लोगों को भी बात समझ में आ जाए। जी असल में बात ये हुई कि ये साहब ये दावा लेकर आए कि जो रफुल यदैन है वो तर्क हो गया है। अब उसकी दलील सही मुस्लिम से लेकर आए। हमने ये कहा है कि भाई हम जो रुकू वाला रफुल यदैन करते हैं, रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए, हमारे पास जो हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें रुकू का जिक्र है, रुकू में जाने का जिक्र है, रुकू से उठने का जिक्र है, बहुत ही वाज़ेह हदीस है, सही बुखारी वगैरह की। हमने कहा कि ऐसी कोई हदीस है क्या जिसमें रुकू में जाते हुए उठते हुए रफुद्दीन तर्क करने के बाद हो? ऐसी कोई हदीस ये साहब नहीं लाए। ये साहब लाए सही मुस्लिम की ये हदीस जिसमें यह जिक्र है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद में यानी सलाम फेरते वक्त जो सहाबा इशारा करते थे, ये तशरीह हनफी उलमा की मैं पेश कर चुका हूँ कि सलाम के वक्त जो इशारा करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इशारा बिल से मना किया। महमूद हसन देवबंदी साहब के अल्फाज, उनकी वर्डिंग है इशारा बिल, उससे मना फरमा दिया। तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद में सलाम फेरते वक्त इशारा करने से मना फरमा दिया। अब ये शख्स कह रहा है सारे रफुल यदैन को रोक दिया, जबकि ऐसा जिक्र नहीं है इसमें। इस पर हमने एक सवाल और कर दिया कि अगर सारा रफुल यदैन छूट गया है इस हदीस की रूह से, तर्क हो गया है, तो जो पहला रफुल यदैन करते हो उसका क्या बनेगा? इस बेचारे के पास कोई जवाब नहीं था इसका। हाँ, हालांकि दूसरे जो हनफी होते हैं मुनाज़िर टाइप के, उनके पास जवाब है इसका, हमें सब पता है। लेकिन इस बंदे के इतना यतीम है, इसको भी टेक्निक नहीं पता, हनफियों का जवाब भी नहीं पता, काउंटर करने का तरीका नहीं है, उसको कुछ नहीं पता इसको। अब ये शख्स इतना मजबूर हो गया, इतना लाचार हो गया, कहता है कि मैं पढ़ूंगा तो पहला रफुल यदैन नहीं करूंगा। आप मेरे साथ आगे पढ़ के देख लो। फिर कहता है कि वो अहले हदीस इतनी जगह गलत करते हैं, हनफी एक जगह गलत करते हैं। तो ये बेचारा बड़ी मजबूर है अहले हदीसों को गलत साबित करने के लिए, और इतना लाचार हुआ, मजबूर हुआ कि अपने मुंह से हनफियों को गलत कह रहा है। उसके बाद मुझ पर कहा कि तुमको अरबी नहीं आती, ये नहीं आता। हालांकि मैंने तो किसी आयत का तर्जुमा किया ना हदीस का तर्जुमा किया, तर्जुमा इसी नहीं किया है, सब कुछ नहीं किया। अब मैंने हनफी उलमा के हवाले पेश कर दिए, उन्होंने भी कहा है कि इस हदीस से हनफियों का इस्तेदलाल कमजोर है, सही नहीं है। तो ये अब तक की गुफ्तगू का ये खुलासा है। हम इन साहब से पूछते हैं कि जिन हनफी उलमा की तशरीह मैंने आपके सामने रखी है, इस हदीस की तशरीह हमारी मत मानो, हम तो अपनी बात नहीं कर रहे हैं अभी। जो हनफी उलमा तुम्हारे बुजुर्ग महमूद हसन देवबंदी, तकी उस्मानी साहब, ये लोग जो इस हदीस की तशरीह कर रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप बताइए कि ये लोगों ने जो तशरीह की, हमारी बात नहीं कर, इन्होंने जो तशरीह की उस पर आपकी क्या राय है? लंबी तकरीर ना करें मौलाना साहब, लंबी तकरीर ना करें। आप ये कह दीजिए कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुकाबले में देवबंदी की तशरीह लेते हैं, उनकी बात कबूल करते हैं। आप ये कह दीजिए, सब सुन रहे हैं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुकाबले में देवबंदी की तशरीह कबूल करते हैं। बात खत्म, मसला खत्म। आप ये कह दीजिए, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुकाबले में देवबंदी की तशरीह करते हैं, वो जो चाहे ताबील। आप हमारे साथ जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो तशरीह इन्होंने की है क्या वो गलत है? आप कह रहे हैं गलत है वो, फिर हम आपसे पूछते हैं कि सही तशरीह क्या है? हदीस के आप कह रहे हैं कि हदीस के मुकाबले में ये हनफी उलमा है, इनकी तशरीह, इसकी तशरीह हदीस में तुम्हारी औकात क्या है हदीस की शरह करने की? तुम्हारा कौन? हाँ, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना वो हदीस नहीं है। मतलब ये समझ कि ये हनफी उलमा हदीस के खिलाफ गए। अरे हदीस के खिलाफ है कि तुम्हारी गंदी सोच के खिलाफ है? तुम्हारे दिमाग में जो भूसा भरा हुआ ना उसके खिलाफ है बात, ये हदीस के खिलाफ नहीं है।
اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ پہلے یہ دعویٰ کرو کہ یہ حنفی علماء کی تشریح غلط ہے. آپ ہماری بات ایک ہی بار کیوں آتے بھائی کہ تم حدیث کو چھوڑ رہے ہو؟ ارے حدیث کا آپ کس کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو یہ جو آپ نے حدیث کو مان رہے ہو، مسئلہ یہ کہ آپ نے حدیث کو مان رہے ہو اور نہ علماء حدیث کی آپ نے حنفی علماء کو دونوں کو چھوڑ رہے ہو نا. تمہاری یقین یہ ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم کتنے بڑے یتیم ہو کہ نہ تم حدیث کو مان رہے ہو اور نہ اپنے حنفی علماء کو مان رہے ہو. یہ جو تم دعویٰ لے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہو نا، یہ ایک ایسی بات ہے نا جو حدیث میں ہے نا حنفی علماء میں. یہ تمہاری بیماری ہے، یہ تمہاری اپنی بات ہے. یہ بلا وجہ کا تم نے یہ جو ہے وہم پالا ہوا ہے کہ حدیث کو لے کے چلو نا. حدیث تمہارے ساتھ نہیں ہے، نہ تمہارے ساتھ حدیث ہے، نہ تمہارے ساتھ اہل حدیث ہے، نہ تمہارے ساتھ علماء دیوبند. کون بھی اللہ کے بندے تمہارے ساتھ یہ شیطانی وسوسہ ہے بس. مولانا صاحب میں ابھی دکھاؤں گا کس کس محدث نے اس حدیث سے استدلال لیا ہے. بار بار مائک میوٹ نہ کرے، لوگ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ریکارڈ ہو رہا ہے. ابھی دکھاؤں گا کس کس محدث نے. بالکل بالکل میں میوٹ کروں گا. ابھی شروع میں آپ نے بڑی بہت ہی جو ہے اعتماد سے مجھ سے کہلوایا تھا کہ حدیث کے خلاف کسی کی بات آئے گی اس کو چھوڑ دیں گے. میں نے کہا ہاں چھوڑ دیں گے. اب حدیث کے خلاف اپنی بات چھوڑنے کی تیار نہیں ہے. آپ شروع میں یہ کہلوائیں کہ حدیث کے خلاف کسی کی بات نہیں مانیں گے. حدیث کے خلاف آپ اپنی بات نہیں چھوڑ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں محدثین سے کیا پیش کریں گے. اسے میں پیش کر دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ سن رہے ناظرین، اس نوجوان کا مائک بار بار میوٹ کیا جا رہا ہے. وہ کہہ بھی رہا ہے کہ آپ میرا مائک میوٹ کیوں کر رہے ہیں، آپ مجھے بولنے دیجئے. لیکن نہیں، آپ پورا ویڈیو دیکھیں کس طرح سے کفایت اس میں ہائپر ہوئے ہیں، دوسرے لوگ ان کی مدد میں آئیں. بس میں آپ تمام لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی آپ کو کوئی تحقیق کے نام پر، قرآن حدیث کے نام پر دھوکہ دیں، شک اور شبے میں ڈالیں، آپ اسی طرح کاؤنٹر سوال کیجیے. جب تک آپ کاؤنٹر سوال نہیں کریں گے اور بس اس عالم کی عقیدت میں اس نے جو دے دیا لے لیں گے، تو پھر یہ سمجھیے کہ آپ گمراہی کے حوالے ہو رہے ہیں. قرآن حدیث کے نام پر آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے. کسی محدث کا حوالہ پیش کریں. میں آپ کے سامنے دیکھیں محدثین میں سب سے بڑے جو محدث ہیں، سب سے بڑے محدث جن کو سلطان المحدثین کہا جاتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ. امام بخاری کی پوری کتاب ہے رفع الذنب پہ، جز اور رفع الذنب. کیا تمہاری ہمت ہے، تمہاری اوقات ہے کہنے کہ ان کو عربی نہیں آتی؟ چلو کی بات لوگ عربی نہیں آتی، مانتا ہوں عربی نہیں آتی، ہماری عربی جو ہے کہ اچھی نہیں ہے جتنی آپ کی ہوگی. ہو سکتا ہے آپ کی عربی مجھ سے اچھی ہو، لیکن امام بخاری کی عربی مجھ سے اور دون سے اچھی. امام بخاری کی عربی مجھ سے بھی اچھی ہے، تم سے بھی اچھی ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ان کی کتاب جو ہے رفع الدین کی جو کتاب رفع الدین کی کتاب صفحہ نمبر 31 پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے اس کی تشریح کی کہ یہ جو اسکول فی صلاۃ ہے فإنما كان هذا في التشهد لا في القيام، لا في القيام. یہ تشہد کا معاملہ، قیام کا معاملہ نہیں ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی تشریح ہے. امام ابن العقیل رحمہ اللہ یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، صحیح بخاری وغیرہ کی شرح کر رکھی ہے. انہوں نے بھی اس بات کی طرف جو ہے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ اس حدیث میں جو ہے یہ رکوع کی بات نہیں ہے، بلکہ یشیرون بِأَیدیہم جانبین یریدون بذالک السلام. تو یہ سلام کے بارے میں ہے. یہ اتنے بڑے جو ہے محدث ہیں. امام نووی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں. امام ابن حجر رحمہ اللہ تلخیص میں کہتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں. امام ابن شیبہ رحمہ اللہ، امام ابن حبان، امام ابو نعیم، امام نسائی، امام ابو داؤد، امام نبی، یہ بہت سارے محدثین ہیں. یعنی محدثین کی ایک لمبی قطار. آپ کس محدث کو لائیں گے؟ کس محدث نے کہا کہ اس سے مراد ہے؟ اتنے سارے محدثین اگر محدثین کرائے، اتنے سارے محدثین کے حوالے میں پیش کروں گا. آپ بتائیے کون کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد ہے؟ مولانا صاحب بات سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسکنوا فی الصلاۃ. بات سنیے، یہاں مت گھمائے اس محدث نے کہا، اس محدث نے کہا، یہ چھوڑیے. آپ نے محدثین کا نام لیا تو ہم نے بھی کچھ گنا دیا. میں تو محدثین کا حوالہ نہیں دے رہا تھا. آپ کہنا کہ محدثین کہہ رہے ہیں تو ہم نے بھی کچھ محدثین کا حوالہ آپ کو سنا دیا. اس سے پہلے کیا بولتے؟ اب آپ اپنی تشریح کر رہے ہیں تو آپ کی تشریح نہ حدیث میں ہے، نہ محدثین کیا ہے، نہ علماء احناف کیا. بھائی جو آپ کے دماغ میں ہے نا، جو چل رہا ہے وہ کہیں نہیں دکھ رہا ہے. نہ محدثین کیا دکھ رہا ہے، نہ حدیث میں دکھ رہا ہے، نہ علماء احناف کیا دکھ رہا ہے. صرف آپ میں چل رہا ہے. اور جو بھی آپ نے جھوٹ کہا نا کہ حدیث کے خلاف آپ محدث پیش کریں گے، میں حدیث کے خلاف نہیں، حدیث کے مطابق محدث پیش کروں گا. امام زیلی نے اس حدیث سے استدلال لیا ہے، امام عینی نے اس حدیث سے استدلال لیا ہے، اور امام نووی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ احناف نے اس حدیث سے استدلال لیا ہے. امام نووی رحمہ اللہ کا حوالہ میں پیش کر چکا. امام نووی نے کہا کہ اگر کسی، خود امام نووی کا استدلال کیا ہے؟
इमाम नबी का मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इमाम नबी सही मुस्लिम में बाब बांधते हैं, कहते हैं बाबुल अम्र बिस्सुकून फी सलात व नही अनिल इशारति बिल यद व रफ़िया इंद सलाम। वो साफ कहते हैं, ये बाब बांधते हैं कि इससे मुराद क्या है, हाथ से इशारा करना और सलाम के वक्त। ये इमाम नबी रहमतुल्लाह ने कहा। और आगे उन्होंने कहा, इमाम नबी रहमतुल्लाह ने क्या कहा कि इन्होंने बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए मैं इमाम नबी रहमतुल्लाह की बात दिखा रहा हूँ उनकी दूसरी किताब से, शरहुल मुहज़्ज़ब। वो बाब जो सही मुस्लिम का जो बाब है जिसमें हदीस लाए हैं, वो तो इमाम नबी नहीं बांधा है ना, वो बाब क्या है? शेख सरताज इमाम नबी का बहुत प्यारा जुमला मेरे पास है। इस शख्स ने इमाम नबी का बात किया ना, तो इमाम नबी रहमतुल्लाह ने इस हदीस पे क्या कहा है जरा सुने। बड़ी बड़ी प्यारी बात इमाम नबी ने की है। मैं हवाला दे रहा हूँ शरहुल मुहज़्ज़ब जेल नंबर 3 सफा नंबर 403, अगर कोई निकाल सके तो निकाले, मेरे वेबसाइट पे तो है। इमाम नहीं कहते कि अम्मा हदीस जाबिर बिन समरा फइहतिजाजुहुम बिही मिन अअजबिल अशियाई, कि जाबिर बिन समरा की हदीस है ना, इससे जो हनफी लोग इस्तेमाल करते हैं रफ़ीदैन छोड़ने पर, ये सबसे अजीब बात है। इमाम ने फरमाया ये अजब लगा दिया, अजूबों में भी अजूबा है, यानी बहुत बड़ा अजूबा, 8वां अजूबा कह लीजिए, बहुत बड़ा अजूबा ये। और आगे क्या कहते हैं, वअक़बही अनवाई जहालत बिस्सुन्ना, और सुन्नत से जहालत की सबसे बदतरीन किस्म है। इमाम नबी क्या करें, कह रहे हैं कि सुन्नत से जहालत की, ये शख्स यहाँ आके सबको जाहिल बोला ना, ये इमाम नबी इसको जाहिल बोल रहे हैं। इमाम नबी उन लोगों को जाहिल बोल रहे हैं जो इस हदीस से इस्तेलाल करते हैं रफ़ीदैन छोड़ने पर, बेवकूफ है रफ़ीदैन। ये इमाम नबी जाहिल बोल रहे हैं। ये बंदा कितना सही हो रहा है, दूसरों को सही कर रहा था। इमाम नबी का पता नहीं किसे नाम ले लिया। तो इमाम नबी फरमाते हैं वअक़बही अनवाई जहालत बिस्सुन्नत लिअन्नल हदीस लम यरिद फी रफ़इल ऐदी फी रुकू, क्योंकि हदीस रुकू जाते वक्त रफ़ीदैन व रफ़अ मिन्हु, और रुकू से उठते वक्त रफ़ीदैन के बारे में नहीं है। लाकिन्नहुम कानू यरफ़ऊना ऐदियहुम फी हालत सलाम मिन सलात, लेकिन मामला ये था कि सहाबा तशहुद में सलाम के वक्त अपने हाथों को उठाते थे, वह युशीरून बिहा इलल जानिबैन, दाएं बाएं उससे इशारा करते थे, वह युरीदून बिज़ालिका सलाम अला मन अलल जानिबैन, और उससे उनका मुराद ये होती थी कि जो अगल बगल में है उनसे जो है उनकी तरफ जो इशारा किया जाए। और ये हदीस की वो तशरीह है जिस तशरीह से इख्तिलाफ करने वाला कोई मुहद्दिस मौजूद नहीं है। इस तशरीह से इख्तिलाफ करने वाला कोई हाज़ा ला खिलाफ बैना अहल हदीस व मन लहु अदना इख्तिलाफ बि अहल हदीस, और अहले हदीस से, मुहद्दिसीन से, दुनियाए हदीस से जिसका रत्ती बराबर भी वास्ता है ना, मामूली सा भी वास्ता है, मामूली सी भी वाबस्तगी है अगर किसी को अहले हदीस से, मुहद्दिसीन से, तो वो इस इस्तिलाल को हरगिज नहीं मान सकता। तो आप देखें, आप इमाम नबी का नाम नहीं लेंगे, इमाम नबी ने कहा, अरे इमाम नबी ने तो मिट्टी कर दिया उन लोगों को तो जम को जाहिल कहा है, और कहा कि अहले हदीस में इत्तेफाक है, मुहद्दिसीन अहले हदीस में से कोई ऐसी बात नहीं करता। जी अब आप इमाम नबी से साबित करें। जवाब सुनिए। पहले आपने कहा ये हदीस सलाम के मुतलक है, आप हदीस में सलाम का लफ्ज़ नहीं दिखा पाए। फिर आपने कहा इस पे इमाम नबी ने बांधा है सलाम में तशहुद का बाब, तो आपने आधी बात। भाई आप दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं, थोड़ी सी बात मुकम्मल कर लीजिए। आप इमाम नबी का हवाला दे रहे थे अपनी ताईद में, आप इमाम नबी रहमुल्लाह का हवाला दे रहे थे अपनी ताईद में। अब मुझे ये बता दीजिए, सबके सामने इतराफ कर लीजिए कि भाई इमाम नबी रहमुल्लाह ने ऐसा नहीं कहा है जो आप कहना चाहते थे, जो उनकी तरफ आप मंसूब कर रहे थे, वो इमाम नबी रहमुल्लाह ने वो बात नहीं की है। इसको आप तस्लीम कर लीजिए, कोई मसला नहीं, इसको आप मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए, कोई मसला नहीं है। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि सलाम का जिक्र है, सलाम का जिक्र है हदीस में, हम आपको दिखा देंगे हदीस का जिक्र सलाम में है। एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, अल्लाह के नबी की बात की तशरीह होती है, हदीस की शरह होती है। जैसे कुरान की आयत की जो है शरह। इनका जवाब आ जाए, वो एक मौजू पे जवाब आ जाए, इमाम नबी का हवाला जो ताईद में इमाम नबी
इमाम नबी की बात कर रहे थे। वीडियो पीछे कीजिए। मैंने कहा इमाम नबी ने ये, आपने ये इस इश्काल पैदा किया था कि इस हदीस से ये मतलब किसने लिया है। मैंने कहा इमाम नबी ने ये लिखा है कि हनफियों ने इस हदीस से इस्तिदलाल लिया है। मैंने ये नहीं कहा कि इमाम नबी ने इस हदीस से इस्तिदलाल लिया है। वीडियो रिकॉर्ड पीछे कीजिए, ये चल रहा है। दूसरी बात, आपने कहा मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं थोड़ा समझ रहा हूँ, एक मिनट, मैं बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन आप लोग उस, जब आपको कोई हवाला नहीं मिला तो चोरी चुपके से इमाम नबी को भी अपनी कतार में खड़ा करना चाहते थे। मैंने आपको उस लाइन से निकाल दिया इमाम नबी को, समझ रहे? मैं समझ रहा हूँ अच्छी तरह से कि आप कैसे बचाव करते हैं अपना, लेकिन इमाम, ये वजाहत हमारी तरफ से ना आती ना तो इमाम नबी को साथ में खड़ा कर लेते हैं आप अपने तौर पे। यानी आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि इमाम नबी ने जिक्र किया है कि उलमाए अहनाफ ने इस्तेदलाल किया। क्या इमाम नबी ने उसकी तायीद की है? अरे उसकी मरम्मत की है भाई, उसकी तजहील की है कि ये जाहिल लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। जाहिल का, उनको मुहद्दिसीन का कहा, मुहद्दिसीन में इख्तिलाफ नहीं। इमाम नबी की बात मैं पढ़ चुका हूँ, मुहद्दिसीन में, और जिसको जरा सा भी हदीस का जरा से भी वाबस्तगी है अहले हदीस से, वो कभी ऐसी बात नहीं कर सकता। ये इमाम नबी रहमतुल्लाह की बात है। जी आगे बोलिए। आप सुनिए, आप कह रहे हैं कि किसी जरा सा भी हदीस के साथ उसका वाबस्ता हो, उसने ऐसा नहीं किया। आपके घर का हवाला पेश कर देता हूँ, ये सुनिए। शमसुल हक ने कहा है, मैं हवाला पेश कर देता हूँ, हवाला सुनिए। इमाम ज़ैली को उसने मुहद्दिस कबीर लिखा है, ठीक है। इमाम ज़ैली ने अपनी किताब नज़्बुर राया में इसी हदीस से हवाला लिया है। मुझे आप बताइए, आप किस बना पर, कुरान की आयत की बिना पर इमाम नबी को बोल देते हैं और इमाम ज़ैली करते हैं, इसकी क्या दलील है? हदीस से साबित कीजिए, इसकी क्या दलील है? आप इमाम ज़ैली की अरबी, मैंने इमाम नबी की अरबी अल्फाज पढ़े हैं, आपकी नजर में मुझे अरबी नहीं आती, टूटी फूटी जो भी आती मैंने पढ़ दिया। आप भी अपनी जो भी जैसी भी अरबी आपको आती है, इमाम ज़ैली के अल्फाज पढ़ दीजिए, इमाम ज़ैली रहमतुल्लाह के अरबी अल्फाज पढ़ लीजिए। हम भी देख लेते ना, आपने जाहिल कहा ना, तो हम भी देखे ना कि आपको कितना पढ़ना आता है। ये उधर इधर की बहस छोड़िए, आप हवाला मैंने पेश किया, आपने पहले कहा किसी मुहद्दिस ने नहीं। ऐसे मान लें आपका हवाला, आप अरबी पेश कीजिए, उनकी इबारत पेश कीजिए, इमाम ज़ैली रहमतुल्लाह की इबारत पेश कीजिए। इमाम ज़ैली रहमतुल्लाह ने, जैसे इमाम नबी का, अभी देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इमाम नबी का आप अपनी किताब में खड़ा करने जा रहे थे ना कि इमाम नबी ने भी ये बात कही है। हो सकता है कि इमाम ज़ैली ने भी वो बात नहीं की हो। इमाम नबी ने किसी का नकल किया कि फला लोग ऐसे कर रहे थे, फिर उन्हें मरम्मत कर दी। तो इमाम ज़ैली के अल्फाज ना, अभी देखो दिन में तारे नजर आ रहा, दिन तो नहीं है, रात है। अभी देखिए लोगों के सामने हकीकत क्या खुलती है। आप अल्फाज लाइए। हमारा मुतालबा है कि आगे बढ़ने से पहले, अगर आपके पास टाइम ले लीजिए, अभी हमारी स्ट्रीम चालू है, लेकिन इमाम ज़ैली रहमतुल्लाह के अल्फाज लाइए। आप टाइम लीजिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन इमाम ज़ैली रहमतुल्लाह के अल्फाज लाइए, हम वो अल्फाज पढ़ेंगे, आप पढ़ के बताइए। आप अगर उसमें गलती करेंगे, हम बताएंगे कि उनके अल्फाज क्या, वो कहने क्या चाहते हैं। तो इमाम ज़ैली रहमतुल्लाह के अल्फाज अगर आपके पास है तो पेश कीजिए, नहीं है टाइम लीजिए, जाइए लेके आइए, उसके बाद पेश कीजिए। जी जनाब, सबसे पहले बता दूं, आपने 3 दफा ये झूठ कहा कि मैंने इमाम नबी के बारे में कहा कि उसने ये इस्तेदलाल लिया है। आप वीडियो को पीछे लीजिए, लाइव चल रहा है, सब देख रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा इमाम नबी ने ये कहा है कि अच्छा, मेरा एक सवाल, चलो ठीक है, आपने इमाम नबी के बारे में नहीं कहा, झूठा कहते रहो। अच्छा, क्या इमाम ज़ैली के बारे में आप दावा करते हैं? क्योंकि पीछे रिकॉर्डिंग मौजूद है, एक बार दोहरा दीजिए। क्या इमाम ज़ैली ने यह कहा है कि इस हदीस से नमाज के सारे रफ़ुल तर्क हो गए, यानी जिन लोगों ने, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इमाम ज़ैली का भी है? क्या आपका ये दावा है? ये वाज़ेह कर दीजिए जनाब। आप छोड़िए जनाब, आपको हवाला चाहिए था किस मुहद्दिस ने, आपको लंबा खींचते हैं बात को। आपको इमाम मुहद्दिस का हवाला चाहिए था, मैंने मुहद्दिस का हवाला दिया। हाँ, आप बोल रहे हो इमाम ज़ैली के बारे में जो आपने दावा किया, का हवाला दिया। आपको ये चाहिए था कि ये 2 हदीसें हैं, मैंने ये कहा कि 2 अलग अलग हदीसें हैं, 2 अलग अलग सनदें हैं, 2 अलग अलग वाक़ात हैं। हदीस पर अभी नहीं आया, मैं हदीस पे जा रहा था, ज़ैद भाई ने रोक दिया, मैं रुक गया, अभी उस तरफ नहीं गया मैं। और ज़ैद भाई ने बहुत अच्छी बात की कि पहले ये हिस्सा खत्म हो जाए। मेरे भाई, आप इमाम ज़ैली की इबारत ले आए। इमाम नबी का नाम आप अपनी किताब में गिनाने जा रहे थे, मैंने गिनाने नहीं दिया, आपको रोक दिया, और अब आप खुद मान रहे हैं कि मैं इमाम नबी का नाम नहीं ले रहा था। यही हाल आपका इमाम ज़ैली के साथ होगा। आप लेकर आओ उनकी इबारत। आपके पास अगर इबारत है तो पढ़ के बताइए, और इबारत नहीं है तो टाइम लीजिए, जाइए 5 मिनट 10 मिनट आइए, हम वादा करते हैं कि आपको इंटरव्यू, आप ज़ैद भाई इंशाल्लाह मैनेज करें, आपको ले लेंगे, आपके आते ही आपको इंटरव्यू दे दी जाएगी। तो अगर आपके पास इबारत पढ़िए, नहीं है तो ढूंढ के लाइए, हम आपको टाइम दे रहे हैं।
تو جناب آپ میری- کو پتا کیسے چلا امام زیلئی کے بارے میں؟ کوئی عبارت تو ہوگی نا ان کی، جناب جیسے آپ میں نے پتا چلا وہی تو میں نے نہیں آپ کو حوالہ دیا نذر رائے کا، جناب میں نے آپ کو حوالہ دیا نذر رائے کا، امام زیلئی نے فرمایا عبارت پر کہہ رہے ہیں اس نے پانچ یار دفعہ جو عبارت کہا ہے تیار کہ میں نے ابھی دوسری بات نہ زید کریں۔ بھائی ان کے پاس عبارت نہیں ہے، ان کو ٹائم دیجیے، ان کو نکالیے، یہ جائیں لے کر آئیے، 10 منٹ کے بعد واپس آئیں اور ان سے ہم جو ہے اس یہ پہ بات بول دیں ایک بار کہ ان کے پاس جا کے آ رہے ہیں۔ توحید بھائی آپ لے کے آ جاؤ، عبارت لے کے آؤ، عبارت لے کے آؤ، صرف دعویٰ مت کرو کہ امام زیلئی نے آئیڈیا الفاظ لے کر آئیے۔ ہاں لے کے آ رہے ہو تھوڑی مولانا دیر صاحب میں؟ بات سنیے، ابھی مولانا صاحب تیار ہے بات نہیں؟ ارے بھائی ہاں نہ بولو نا یار، کچھ کلیئر کٹ بات میں تو کہہ رہا کرو۔ ہوں بات سنیے نا، آپ کے پاس بات نہیں ہے تو بولو ابھی نہیں آ رہا ہوں 10 مولانا منٹ۔ صاحب آپ دوسرے میں ٹاپک اگر- پہ کیوں جا رہے ہو؟ اسی ٹاپک پہ بتاؤ۔ آپ دوسرے ہے ٹاپک پہ کہ جا رہے ہیں، نہیں آپ کہیں اور جا رہے ہیں۔ بات ہے صحیح ارے مسلم بھائی کی آپ حدیث کے پاس آپ امام پہنچے زیلئی کے صحیح بارے مسلم میں سے ہے یا آپ نہیں ہے؟ پہنچے۔ زید بھائی ان کو تھوڑا ٹائم دیجیے، لے کر آئیں، ان کو ٹائم دیجیے، وہ عبارت لے کر آئیں۔ کہ جو انسان قبول کرتا ہے نا وہ لائے گا، جو انسان ابھی قبول ہی کرنے تیار نہیں ہے وہ کیا، وہ تو ارے بھائی ہاں یا نہ بولو، مولانا صاحب بات سنیے، مولانا صاحب بات سنیے، میں آپ کو کہتا ہوں اگر میں 3 محدثوں سے یہ بات دکھا دوں کہ اس 3 سے کیوں لا رہے ہو؟ ایک امام زیلئی سے جو اپنے دعویٰ، جو ایک بات ہو رہی 1 to 1 امام زیلئی کا دعویٰ کیا، ابھی چینج کر رہے ہو تو بول دو میں چھوڑ رہا ہوں امام زیلئی کا، میں ان کا نام مائنس کر رہا ہوں، میری سے مسٹیک ہو گئی ہے، کچھ قبول کر لو یہاں پہ پھر سے اسٹریم میں، اور اگر ہے تو لے کے آؤ۔ میں کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں 3 محدثین زیلئی ایک ہے، امام زیلئی کا ایک لے آؤ، عبارت لے آؤ۔ زید بھائی میرا ان کو تھوڑا ٹائم دیجیے، ان کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں، امام زیلئی کے بارے لے کر آئیں۔ اچھا چلو ان کو بیک سٹیج کرتے ہیں، ابھی اگلا جو میں راستہ روکیے، یہ لے کر آئیں، یہ اس کو حوالہ لے کر آئیں، تب تک آپ آگے بڑھائیے، اس ٹیم کو آگے بڑھائیے۔ ٹھیک ہے اچھی بات ہے۔ ہاں بیک سٹیج کر رہا ہوں میں آپ کو توحید بھائی، آپ تھوڑی دیر میں جلد سے واپس آئیے، اور جیسے ہی آپ کے پاس عبادت ریڈی ہو تو بول دیجیے ریڈی ہے آپ۔ انجینئر اسٹوڈنٹ آپ تیار؟ ناظرین آپ دیکھیے کہ کس مکاری کے ساتھ یہ لوگ صرف ایک طرف کے حوالے دے رہے ہیں، دوسری طرف کا کچھ نہیں دکھا رہے۔ لیجئے میں آپ کے سامنے کچھ اسکین لگاتا ہوں کہ اسی حدیث کے متعلق بہت سے محدثین نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اس حدیث سے ان لوگوں نے دلیل پکڑی ہے جو لوگ رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے علاوہ نہیں کرتے، لیکن وہ محدثین کے اقوال یہ نہیں دکھائیں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اجتہادی مسائل ہیں، لہذا اس میں گنجائش ہے، لوگوں کو آپس میں نہ ٹکرائیں، ایک دوسرے کو گمراہ نہ کہیں۔ مجتہدین کا اختلاف آپس میں برحق ہوتا ہے، لیکن جو مجتہد نہیں ہیں یعنی یہ غیر مقلدین، وہ اگر اجتہاد کرنے بیٹھیں گے تو یہ گمراہی ہے۔ لہذا اس طرح کی ڈیبیٹ سوالوں کے جوابات دینے کے نام پر یہ سراسر امت میں انتشار پھیلانا ہے، اسی لیے یہ ویڈیو ہم نے آپ خلاصہ تک یہ ہے کہ پہنچایا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب بھی کاؤنٹر سوال کیے جائیں گے یہ لوگ ہائپر ہو جائیں گے، یہ لوگ جواب نہیں دیں گے، آپ ہی سے سوال کریں گے۔ بس میرا ویڈیو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے i+ ٹی وی جو اس نام سے کھولا ہے کہ اختلاف کا حل، آئیے سوال کیجئے، حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ سے سوال پوچھیں گے جہاں پھنسیں گے۔ لہذا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ فروعی اجتہادی مسائل کے اندر اس قدر شدت پیدا کریں، نوجوانوں کو آپس میں لڑائیں ٹکرائیں۔ صحیح تحقیق یہ ہے کہ آپ انہی لوگوں سے کاؤنٹر سوال کیجیے تو ضرور آپ کو صحیح بات کا علم ہوگا۔ بس زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچائیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے، انشاءاللہ العزیز حق کی یہ آواز آپ تک پہنچتی رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔